Alhamdulillah, doing good. Excited for this space. Excited to hear your views. Yes, I'm hoping that more people will join. So we're discussing the Pakistani movies and the kind of films that have come. So Sadaf and I have both watched Qaid-e-Azam Zindabad and London Nahi Jaunga. So we're looking forward to what you guys think. And please raise your hand if you've seen the film and if you wanna talk more about it. So Sadaf, what did you think? Let's start with Qaid-e-Azam Zindabad. Do you want to start with that? Yes, I think Qaeda Azam Zindabad. I'm gonna have to admit something here that I missed maybe 15 minutes in the beginning because traffic की वजह से हम थोड़े late पहुंचे. So I will be going to see that movie again. But I thought it was very entertaining. What did you think? I mean, it had me enthralled. No, absolutely. I think the first half was really, really strong. Like I've made my reviews about it, I've raved about it. But I feel like it's a lot of people had the criticism that it's like copied from Singham and Simba and all of those, the Rohit Shetty universe. But I thought that it had its own obviously Pakistani flavor. And I think that the second half could have like they could have used Mahira a lot more because I think the first half was strong because Mahira was there. So I felt like the second half could have used a lot more of her. But still, I thought it was very, very entertaining for sure. I think Fahad Mustafa is a superstar. Yeah, I'm going to agree that Fahad Mustafa carried most of that movie on his shoulders. बहुत अच्छी acting उन्होंने की. I was very impressed. And by the way, I met him while he was in Dallas. कोई वो cricket tour के ऊपर आए हुए थे. Very humble, very sweet guy, and deserves all the success he's getting because he worked hard for it. And I agree with you on Mahira too. Mahira looked absolutely gorgeous, but खैर कोई नई बात तो नहीं है, right? She looked beautiful and she was acting well as well. लेकिन मुझे ये है कि she didn't have the meat in the role that she needed. I think in the first half there was a lot more of her, but they could have added a little more to her role. But कुछ होगी कोई mechanism या कोई वो कहते हैं ना algorithm राइटर एंड डायरेक्टर के जहन में तो उसके मुताबिक उन्होंने नहीं ऐड किया. बट हैविंग सेड दैट, it was a good, entertaining movie. I wasn't expecting to like it. Maybe it's expectations, but I'm kind of patriotic myself. मुझे बहुत अच्छी लगी वो idea. I may be not highfalutin and very superior about watching films. लेकिन if it's entertaining, I know, and it was. And I like the ideas in it. आपको नहीं अच्छा लगा वो? I like that थोड़ी सी idealism होती है नबील कुरैशी की movies में. I think we need that. And I don't care if थोड़ा सा अगर कॉपी भी कहीं से किया भी होगा. The Indians are influenced by us, we're influenced by them. We're influenced by Koreans, the Koreans influenced by America. I mean, ये तो चलता है so long as you own what you do, नहीं? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं सदफ क्योंकि इसमें ऐसा ही है कि आर्ट और इस तरह की चीज़ें में आगे पीछे जो होता ही रहता है। लेकिन अब सवाल ये है कि कितना लाइसेंस लिया है और क्या उसके बावजूद उसकी जितने भी एलिमेंट्स जो नबील अक्सर अपनी फ़िल्मों में लेते हैं, तो क्या उसके बावजूद उनकी फ़िल्मों में वो फ्लेवर आ रहा है व्हिच इज़ लाइक अ पाकिस्तानी फ्लेवर और व्हिच इज़ समथिंग व्हिच इज़ एंटरटेनिंग। As long as the film is entertaining, you know what they say, right? Like there's only 11 stories in the world which आगे पीछे करके लोग बनाते हैं. So when we look at Nabil's films, they are heavily inspired from a lot of Bollywood, a lot of Pakistani stage dramas, a lot of Pakistani TV shows, social media trends, and everything. So I think that I believe that Nabil's best work is Load Wedding, but I think that Qaid Azam Zindabad is definitely he's taken it a step further in terms of production value, in terms of storytelling, in terms of stretching his whole magical realism thing. So I feel like the second half should have definitely had more of Mahira, and I feel like it they still maybe would have been better if they would have fine tuned the stunts a bit more. But other than that, I feel like it was definitely a good entertainer. You And know what? Did you not love that scene जब वो पैसे गिरते हैं आसमान पे, आसमान से? I mean, like I've seen that in a actually, hundred no, I movies. think that wasn't one of Yeah. my favorite scenes. You know what was my favorite scene was Mm.
his back and forth with his father. I thought that was like such a great ideological Mhm. conundrum. Like when what makes us do terrible things? What and that is where he truly explained his point of view as a corrupt person. That okay, this is the reason why I have done what I have done. This is the reason why I have made the choices that I've made, and this impassioned plea that Kavi Saab makes. And you know, for those of us who have grown up watching Kavi Saab and who know what an institution he is. So watching him kind of walk in the rain with tears in his eyes and holding that picture of Qaid Azam was just truly very, very iconic. I thought that was really wonderful. That made me cry. That was a beautiful scene. That was my Okay, favorite. so we I didn't grow up in Pakistan, but I have a picture of Qaid Azam in my living room, right? Because he's very important to me and my identity and my family's identity. So, like most Pakistanis, we tend to idealize him and things like this. We do. He is like the keystone, lodestone, जो भी आप कहेंगे, of Pakistani identity, and we reinvent him every time. But this idea that I just love I just love that idea कि कायदे आजम की तस्वीर गायब हो जाती है. I mean, I don't know, it was a very simple idea, but whatever he thought, I adored it, and I think it made for every people who are outside of that kind of Pakistani experience, who don't understand what's been going on, and जो हमारी hopes उम्मीद हैं और उम्मीदें हैं और all that kind of stuff that we hoped for our country. And they will not maybe understand the amount of how should I put the emotional depth behind all of that. So I'm actually quite, I love the idea. I just adored it. And the idea that if you're corrupt, the notes become useless, that is actually quite clever. So I enjoyed it thoroughly. I mean, they were fine tuning to हो सकती थी, right? बिल्कुल मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइटर सेकंड हाफ would have made it an absolutely pitch perfect show sorry film. लेकिन जाहिर है कोई किसी की कोई चीज़ होती है किसी की कोई चीज़ होती है नबील की फिल्म्स हमेशा एक मैसेज के साथ होती हैं हमेशा वो एक कहानी को लेता है एक उसमें सारे मसाला एंटरटेनर मतलब एलिमेंट्स डालता है and then he sort of makes it about a special message. So this was also the same, but it's good to see him looking for different ideas. Like he could have done the same old stuff, but definitely he looked at this very unique idea, this magical realism bit, and kind of inspired from a lot of ideas that float into our heads. So I think that that was definitely enjoyable. I think Fahad was amazing. His cameo, Nabil's cameo in the show, in the why do I keep saying show? In the film was also amazing, and I think that Mahira looked stunning, man. She was so good, and I love that in all of Right. his I love that in all of his films he always shows the female protagonist as this really cool chick and not like some hapless idiot. I loved Ali Zafar's song in this. Oh my God, that It was such a was pretty so song, and brilliant. yeah, and it was like I love like when you listen to it, even when you're listening to it without the Mm, video, it has such a like an old nostalgic feel. I yeah. even loved Luta Re. Both songs were Mm. amazing. I wish that he had added something more like that to take the edge off in the second half. Something like that would have worked. But yeah, I think they were trying for like two different types of storytelling in the film itself. So I'm yeah, the going to song say was really nice. I'm the common man, so मुझे तो बहुत अच्छा लगा वो जब पैसे गिरते हैं ना. And because for a lot of us people, particularly diaspora में, sometimes हम लोग थोड़े से resentful हो जाते हैं when we अपने माँ बाप की कहानियाँ सुनते हैं कि कहाँ पाकिस्तान शुरू हुआ, फिर हमें मुल्क छोड़ना पड़ा बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक हालात होते हैं. कोई राजे महाराजे या नवाबजादे तो नहीं ना मुल्क छोड़ को जाते हैं, राइट. कोई मजबूरी होती है तो कोई अपना वतन छोड़ के जाता है. एंड यू लुक एट दैट मनी, करप्शन, द लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑल दैट स्टफ. तो फॉर आई मीन आई स्पीक फ्रॉम द डायस्पोरा's हार्ट कि हम लोगों की दिल की आवाज़ थी कि क्या वो पैसे अगर वापस आते और
वो पैसे, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, आई एम नॉट गोना गो इनटू पॉलिटिक्स, बट अगर वो जो करप्शन थी, वो पैसे वापस है आम आवाम जो एक्चुअल मेहनत करती है, जो एक्चुअली पाकिस्तान को कीप्स पाकिस्तान अफ्लोट, वो जो रोज सुबह उठ के काम पे जाते हैं लोग, राइट, वो एसीओ में नहीं बैठे होते, वो उनकी कोई वो जदाते नहीं है, लेकिन रोज सुबह उठ के उम्मीद से और यकीन से वो काम करने जाते हैं। आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक इट आइडियल और एनीथिंग, लेकिन दैट ब्रॉट टीयर्स, मैं रोना शुरू हो गई थी। आई नो इट्स सिली मी, बट देयर यू गो। नो बट आई थिंक दैट इसमें उन्होंने एक और एलिमेंट भी बड़ा अच्छा डाला। उन्होंने एक और एलिमेंट ये भी अच्छा डाला कि देखें, अवाम जो है जिन चीज़ों के लिए दूसरों को ब्लेम करती है, आखिर हम खुद भी उसी भेड़ चाल का हिस्सा हैं, लाइक उन्होंने ये भी दिखाया कि जैसे जब फहद का और जावेद शेख साहब का कैरेक्टर जब जाता है लोगों को भी समझाता है, तो वो आम लोगों को भी समझाते हैं। वो बड़े लोगों को तो समझा ही रहे होते हैं, लेकिन वो आम लोगों को भी समझाते हैं कि देखो भाई, ये ना करो, इससे ये गलत काम है। तो सवाल ये है कि इस सवाल क्या है, अच्छी बात ये है कि पूरी फिल्म के अंदर हर एक माशरे के हर हिस्से को एक बात बताई गई है कि देखो यार, आप कहीं भी हो, चाहे आप किसी बड़ी पोजीशन पे हो, चाहे आप एक सियासतदान हो, चाहे आप एक आम आदमी हो, चाहे आप एक दूध वाले हो, या चाहे आप एक टीचर हो, या चाहे आप कोई भी हो, पुलिस अफसर हो, तो ईमानदारी से काम करना is what will make it worth it, and that is how society will get better. But apart from that, I think, yeah, definitely it was one of those very, very good films. I thought the previous Eid was not very good. We didn't, उस तरह नहीं आई हैं चीज़ें पाकिस्तानी सिनेमा के ऊपर, उस तरह जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, इस तरह का बिजनेस वो फिल्में करेंगी जो पिछली पे आई हैं, चक्कर, दम मस्तम, पर्दे में तो गालिबन घबराना नहीं है, डिड वेल। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कोई फिल्म ने इतना कोई बिजनेस नहीं कर पाई जिस तरह का अभी ये ब्लॉकबस्टर जा रही हैं दोनों फिल्में, माशाल्लाह माशाल्लाह। दूसरी फिल्म पे आए सदफ, मेरे ख्याल से लेट्स टॉक अबाउट लंदन नहीं जाऊंगा। I mean, I loved it, though I wasn't expecting to love it. That maybe that's part of it. I was expecting, because I think, and some people have said this as well, okay, it looks very derivative. I mean, when I heard the title, London Nahi Jaunga, what did you think when you heard that title? Obviously, I believed that there were going to be elements of the similar tropes that okay, we also have a speaker, so I'm going to add them, so maybe they want to say something. Uh, so I thought that, yeah, it had those elements of the same old stuff that Khalil Rahman Kamar is often known for. So I have Sayyid on the speaker. Sayyid Yasir, could you go ahead, please, and then I'll move on to Ali. Yeah, Sayyid. Okay, Sayyid doesn't. Oh, there he is. Yeah, go ahead. All right, Ali, could you please go ahead? I'm not sure if Sayyid is going to speak. Thank you. So could you please post some links of the movies you're talking about? I'm not from Pakistan, so don't have any introduction to those. So if you could post tweets about the movies you're talking about, then we'll know how to find them and such. So that'll be great, It's please. really simple, Ali. I think you can just quickly check out Qaide Azam Zindabad and London Nahi Jaunga. They're only two movies. And you can Okay. just quickly check the trailers out on YouTube and come back and share with us your thoughts, because we're basically talking about, we've seen the film. We don't want to spoil it for you. So actually, Oh I no think no. it's better. Yeah I think yeah. we I maybe just the poster or where do something. you live? Where do you I live? live in Hyderabad, India. Oh, you live in Hyderabad, India. So you'll Yeah. have to probably wait when a streaming service Yeah. shows it. But you Maybe could somewhere check out the online. trailers, and you can, yeah, somewhere online whenever it comes. So, but if you check out the trailer, and if you check out what the dialogues are there, and Sure, sure. so basically on ARY Films and Filmwala Pictures. So you can check out their YouTube channel, and then I will now give the mic to Ayaz Hussain. He has raised his hand. So, Sadaf, I'll just come back to you after I take the speaker. Ji, Ayaz. Hello, Assalamu alaikum, everybody. Ji, walaikum assalam. This is Hello. Ayaz Hussain from Pakistan. I'm a visual Awesome. artist
and I just know some information related to global warming, which is ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक नहीं है सर, टॉपिक इस वक्त पाकिस्तानी मूवीज एंड सिनेमा के ऊपर है, कुछ उस पर बात करेंगे। जी मेरा ये कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने जा रही है दिन ब दिन, तो हमें Okay, Yas, we can take you another time Okay, when we do yeah, something global I'm warming. going to remove Okay? Thank you. the irrelevant speakers, please. Ji Sadaf, what did you think of London नहीं जाऊंगा? Go ahead. Well, I was going to say मैंने I think मैंने पहले भी बोला है कि जब मैंने नाम सुना तो मैं थोड़ी सी disappointed हो गई थी when I heard that the new movie was going to be London नहीं जाऊँ, पंजाब नहीं जाऊँगी. It sounded very familiar. मैंने कहा ओ फिर वही अच्छा, लेकिन I had no expectations when I went to see the movie. तो मुझे नहीं इतना कोई उम्मीद नहीं थी, but बहुत अच्छी निकली. And I'm telling you, it was such a premiere कि मैं people around me were laughing their heads off. They were enjoying the jokes. The show screening, this was a special screening. एक तो theaters में तो चल ही रही है and it's getting good audiences. लेकिन this special screening was a red carpet premiere. तो it was houseful, so they had to do two halls for the premiere. So and we had Q&A from Humayun Saeed and Mavish themselves. And I have to say, look, story apni jagah hai. I can agree with some people. They are saying कि अच्छा जी, nothing new and all this kind of stuff, but this is a story that speaks to Pakistanis, right? Don't I mean, पहले हम कंप्लेन करते हैं कि जी बॉलीवुड की कॉपियां बनाते हैं, जब नहीं बनाते कॉपी और कुछ पाकिस्तानी बनाते हैं तब भी हम नाराज होते हैं. That kind of stuff, this is what appeals to Pakistani audiences. इसीलिए हमारे ड्रामे चलते हैं, right? So that, put that thing aside, it was so entertaining. इतनी relax हुई हूँ, just like कायदे आज़म जिंदाबाद. I was entertained absolutely, but it was so entertaining. And एक एक डायलॉग लोग रिपीट कर रहे थे. It was like, जैसे मैं सलमान खान भाई की बड़ी फैन हूँ, तो I go to his movies, तो लोग डायलॉग रिपीट कर रहे होते हैं, there is hooting gallery etc. तो it was a shock to me, there was a hooting gallery. They were taking in the little nuances, जो छोटी छोटी चुटकुले थे, and वो छोटी छोटी चोटें एक दूसरे को, एज यूजुअल हुमायूं सईद और उसका जो क्या है उसका चमचा जो था, राइट, गौहर रशीद, excellent. So people really took it to their hearts. They were relaxed, they enjoyed it. A lot of people who are regular Bollywood fans were enjoying watching it. They had nothing bad to say about it, despite having that old kind of like story or whatever. तो हम लोग as critics, हाँ हमारा काम है कि भाई हम लोग ऐसे कहेंगे कि अच्छा जी ये इट्स ये बात गलत थी, ये छोटी सी हम बारीकी निकालेंगे, बट फॉर द ऑडियंस दे डोंट केयर, दे हैविंग अ गुड टाइम, एंड आई मीन अ गुड टाइम. नहीं बिल्कुल सदफ, इस पे मैं बाद में आऊंगी। कुछ एक दो रिक्वेस्ट हैं, तो शायद वो कोई ऐसी बात करें कि हमें आगे डिस्कशन लेके जाएं। जी क्या कहेंगे आप? अच्छा, स्पारलाई, आपने कुछ बोलना है, आपको माइक नहीं, दिया है. आई डोंट थिंक ही अच्छा. was registering that. Anyway, definitely Sadaf, I think कि मेरा जो पूरा initial reaction था वो यही था कि अच्छा, फिल्म खलील रहमान कंवर ने लिखी है, क्योंकि मुझे फर्स्ट फिल्म से कुछ इस तरह के इश्यूज थे कि भाई अगर लड़की एक भैंसों के पाड़े के पीछे तो अपनी पूरी सारी अपनी क्या वो खत्म कर देगी, अपनी जो भी उसकी एक उसकी एक थॉट प्रोसेस है जो भी है, तो मुझे उससे इशू था। लेकिन थैंकफुली यहाँ पे इस फिल्म में उन्होंने बहुत सारी जो हैं वो मोमेंट्स को, बहुत सारे आइडियाज़ को, बहुत सारे वो थॉट्स को जो एज अ वुमन आप जब सोचते हैं कि ओके यू नो व्हाट आई दिस इज हाउ आई फील एज अ फीमेल प्रोटैगनिस्ट, आई वुड फील एज अ फीमेल प्रोटैगनिस्ट। तो हम्म. वो जो सारी चीज़ें हैं, वो सारी खलील रहमान कमर ने वेरी सरप्राइजिंगली ही वाज काइंड ऑफ ही वाज माइंडफुल ऑफ दैट, and I think that that is such a great way to look at his content now,
because I don't think he's been that mindful of it before, though he has written some really interesting female characters. I will definitely say that. And when I saw the film in Dubai, it was a premiere, and Mehwish and obviously Humayun and Kubra were there. हाउसफुल था, लोग तालियां बजा रहे थे, और मजे की बात ये तब भी तालियां बजा रहे थे जब वो लोग सिनेमा में नहीं थे। फिर मैंने दोबारा अपनी अम्मी के साथ जब फिल्म देखी थी, तो वो भी बहुत वहां पे भी बहुत यू नो तालियां पिट रही थी और वहां पे लोग हंस रहे थे। सो इट वाज एक्चुअली वेरी वेरी इट वाज वेरी हार्टनिंग टू सी। और आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि जब अपनी फ्लेवर की फिल्में बनाते हैं तो भी राजी नहीं होते लोग, और दूसरों की फ्लेवर की फिल्म बनाते हैं तो भी राजी नहीं होते, पता नहीं क्या चाहते हैं। तो मुझे लगता है वही वाली एक जिसकी हम बात करते रहते हैं, वो एक ब्रिगेड है जो किसी हाल में खुश नहीं हो सकती। उन्होंने उन्होंने सिर्फ मतलब लानतें ही भेजनी है उन्होंने। हम दुनिया की बेस्ट फिल्म भी बना देंगे तो भी उनको लगेगा कि भाई टेढ़े उड़े थे तुम। वो आपने सुनी हुई है ना मिसाल, कि टेढ़े Hmm. उड़ने वाली। तो आई मीन आई थिंक उन लोगों को तो कोई खुश नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मेरे ख्याल से द फैक्ट दैट द बॉक्स ऑफिस नंबर्स आर ह्यूज, एंड द फैक्ट दैट ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर मैसिव, एंड द फैक्ट दैट आई आल्सो थिंक दैट ट्विटर इज नो, it's no indication of what's truly happening in the world. Though it is a great indicator of many things, but it's a great indicator of mental illness, I think. But it's not a great indicator of how the real world operates. Like मुझे नहीं लगता कि हम एक पॉलिटिकल डिबेट पे एक दूसरे का कत्ल करने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन नहीं हमारे नहीं यहाँ अब महाविश नहीं, ट्विटर अपनी जगह है। आई थिंक इट्स मोर लाइक कॉन्टेक्स्ट। ट्विटर जो है ना वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काफी चीजें ले जाता है। बिकॉज बिल्कुल। और एक ट्विटर पे मुझे लगता है हर बंदा आके अपने दिमाग का गलाजत निकालने के लिए बैठा होता है। उसको वो हाफ ऑफ द स्टफ आई डोंट थिंक पीपल इवन मीन। हो सकता है वो सिनेमा में जाके वो भी हंसे हों, उन्होंने भी तालियां पीटी हों, लेकिन वो जब उन्होंने ट्विटर पे आके को बात करनी थी फिल्म के बारे में, तो उन्होंने कहना होगा हमें तो नहीं पसंद आई, पता नहीं हुमायूं सईद हीरो क्यों आ जाता है। एक तो मैं बिल्कुल हुमायूं सईद के खिलाफ कोई भी बकवास बर्दाश्त नहीं करूंगी, किसी ने कोई जरा सी भी बात की मेरे से स्पेस से निकाल देना, सॉरी। एनीवे, शामीन मेरी दोस्त हैं, शामीन हम्म। स्पीकर पे हैं, वो आई हुई हैं, बहरीन में रहती हैं। एंड फातिमा, मैं उसके बाद आपके पास आऊंगी, और फिर मैं प्रेशस, यार ऐसे ऐसे नाम लगते हैं आप लोग, आपका बात करते हुए भी बंदा कहता है अच्छा मैं प्रेशस से बात करने जा रहा हूँ। बट एनीवे, जो लोग बात प्लीज नहीं कर रहे अपना माइक म्यूट कर दें। आपकी बात खत्म हो गई है तो लिसनर मोड पे चले जाएं, और अगर कोई बात रहती है तो प्लीज हाथ रेस करें और हम आपकी तरफ आएंगे। जी शामीन, कैसी हैं आप, क्या हाल चाल Assalamu है? alaikum, Mehwish. I hope you can hear me. जी जी बिल्कुल, लाउड एंड क्लियर। शामीन No, so I वेलकम, was just थैंक यू फॉर on ज्वाइनिंग। Twitter and I saw this space, so I thought I'll join. And just wanted to say that I was very, very pleasantly surprised with both the movies. Bahrain, mein, as you know, market and cinema goers are very small. It's not as large as maybe Dubai. इवन इंग्लिश मूवीज स्ट्रगल करती हैं, हॉली बॉलीवुड मूवीज स्ट्रगल करती हैं। बट मुझे पर्सनली दोनों मूवीज बहुत अच्छी लगी। लंदन नहीं जाऊंगा had its own thing, and Qaid Azam has it had its own thing. I don't want to compare both of them. I just want to say that cinema has gone a long way. मुझे भी समझ नहीं आता कि लोग क्यों इतनी बुराइयां करते हैं. From choreography to detailing to architecture to interior to costumes, everything has grown. In fact, it's much better than some of the recent Indian movies मैं जो देख कर आई थी. ठीक है, so I mean it has done very well. बस अनफॉर्चुनेट ये था कि एक हफ्ते के अंदर ये दोनों मूवीज उतार दी गई थी. एंड when I started speaking, because I am with the Pakistan Women's Association here, I'm heading that, even though it's a charitable organization, हम लोगों के events होते रहते हैं. And when I started speaking, लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया, we need to see this, we need to see this. So inshallah next week I'm trying to get both pictures up again for a day. We'll book a cinema. In fact, I think हमें उसकी तो confirmation मिल गई है कायदे आज़म की, दूसरी की भी इंशाल्लाह मिल जाएगी. बट सम आई थिंक डिस्ट्रीब्यूटर्स हों के प्रोड्यूसर्स हों, इनको इन मार्केट्स को टैप करने की भी बहुत ज़रूरत है, सो दैट people get that opportunity to at least support the movie. So this is just what I wanted to say, Mahwish. Thank you, Shamin. And I know that Shamin has spoken about it. I'm just going to go to Precious, and then Shamin, I'll come back to you. If you want to add Sure, sure, something, sure. just raise your hand. And I definitely want to discuss about how, I mean, I don't know if any, distributors are listening, but we'll definitely talk about this. G, Precious, go ahead.
अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सबको हाय हाय हाय, अ, आप हजरत निकले, मैं यकीन से मुझे क्या कार्टून होंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खुशी हुई है, ये बहुत खुशी हुई। लेट, अच्छा क्रिकेट है ना तो आपके नाम है, हाँ फिर आप हजरत हो सकते हैं। सॉरी माय बैड, गो अहेड, क्या कहेंगे? ओके, एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा था कि बेसिकली ना हमारा एक शेल में हम जिस तरह है वो मुझे वैसे लगता है, लाइक पंजाब नहीं जाऊंगी, लंदन नहीं जाऊंगा, ये वो ब्ला ब्ला, मतलब हम कब तक इसी चीजों में फंसे रहेंगे। अब कायदे आज़म जिंदाबाद मूवी देख लें, लंदन नहीं जाऊंगा, दम मस्तम, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो अब ये जितने भी मूवीज देखेंगे ना, तो आपको सभी में ऐसा लगेगा जैसे कुछ प्रिटेंड किया जा रहा है, लाइक कुछ रियलिस्टिक नहीं मूवीज है। इसीलिए होती हैं भाई, मूवीज नहीं इसीलिए नहीं होती नहीं हैं, नहीं, मूवीज मेरी बनाना बात सुने, कैसे मेरी है? ना 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 ना, मेरी बात सुने, मूवीज होती हैं। आप ये देखें, अब बेसिकली सबसे पहली बात तो ये है कि हम अपने कल्चर को दिखाने में ही बड़ी ना एक किस्म की आर महसूस करते हैं, एक किस्म की शर्म महसूस करते हैं। आप पंजाबी, इंडियन पंजाबी सिनेमा को देख लें, उनकी मूवीज को देख लें, उनके कंटेंट को देख लें आप, एक वो फैमिली मूवी है। प्रेशस, मैं देखती हूँ इंडियन पंजाबी मूवीज, एंड सम ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम आर ड्रेडफुल। इतनी बोरिंग और लंबी होती हैं, लेकिन मैं देखती हूँ क्योंकि आई एम पंजाबी, राइट? सो सम ऑफ देम आर वेरी गुड, बट यू हैव टू रियलाइज, एंड मैं आपसे सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू एंड आई अपोलोजाइज, मैं क्विकली बात करके नो खत्म नो, यू करती कैन हूँ कैरी कि ऑन। there is an audience that they are aiming for, and maybe we are not always it, वो masses को right now उनके ज़हन में ये है कि we have to make a mass entertainer to get the money back, so वो इतना नहीं सोचे जैसे अब हम कंपेयर करना चाह रहे हैं दूसरी सिनेमा इंडस्ट्री से ना, but maybe that's my सोच। आप बोलें, sorry। जी सॉरी, मैं कुछ कह सकती हूँ? आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट। जी जी, बोलें बोलें, आप बोलें बिल्कुल। प्रेशस, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ दैट इन फैक्ट इन दो मूवीज में जितना कल्चर और जितनी हमारा मुल्क का एसेंस और हमारे सिटी का एसेंस दिखाया गया है ना, आई हैव नॉट सीन दैट बिफोर। ओके। अगर आप कायदे आजम जिंदाबाद देख लें, इवन द फनी जो पन्स हैं हमारे मुल्क के, हमारी मुल्क की डिटेलिंग देख लें, किस तरह पुराने घर दिखाए हुए हैं, किस तरह कपड़े दिखाए हुए हैं, इट इज़ आउटस्टैंडिंग, यू हैव टू गिव दैट क्रेडिट। और दूसरी बात ये है दैट बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मे बी डजंट साउंड वेरी नाइस, पंजाब नहीं जाऊंगा और कायदे आजम जिंदाबाद, बट अगर आप बॉलीवुड देख लें और हॉलीवुड देख लें, उनकी सबसे रिडिकुलस मूवीज टॉप ग्रोसर्स होती हैं। सो यू हैव टू, एंड आई पर्सनली फील दैट ये दो मूवीज आर अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ एंटरटेनमेंट एज वेल एज कल्चर। सो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। थैंक यू। सैम ने हैंड रेज किया हुआ है। प्रेशस, मैं आपके ऊपर वापस आ दूंगी, आप ओके अपना ओके। माइक म्यूट कीजिए। सैम कुछ बोलें Thank तो you, प्लीज, Mehvish. टर्न सही में Assalamu जी। alaikum, Mehvish अस्सलाम and वालेकुम। Sadaf, to both of you. अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। मैं कुछ आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। आई मीन आप लोगों को आप जानते हैं मैं इंडस्ट्री से कनेक्टेड हूँ, तो मैं एक आपको एनेक्डोट बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सो यहाँ पे लॉस एंजलिस में आई हैव अ फ्रेंड जो कि बॉलीवुड से है, एंड इज अ प्रीटी गुड गाय। आई वोंट टेक हिज नेम, लेकिन वो काफ़ी पाकिस्तानी इंडस्ट्री के आप लोग के एक्टर्स को जानता है। अमजद, कैन यू म्यूट योर माइक प्लीज? हाँ, थैंक यू। सो वो हुआ ऐसे कि एक हफ्ते पहले ही टोल्ड मी, यार मैं ये आई जस्ट वांट टू गो एंड चेक आउट दिस फिल्म, लंदन नहीं जाऊंगा। एंड पर ध्यान से सुनिए आप लोग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो आई सेड ओके यार, चला जाओ। तो ही वेंट एंड ही सॉ द फिल्म, एंड ही नोज हुमायूं सईद वेरी वेल। तो वो फ़िल्म देख के आया, फिर रात को मुझे कॉल की, मैंने बोला यार कैसी लगी फ़िल्म? तो बोलता है यार ये पाकिस्तानी हमारे भाई है ना, लंदन नहीं जाऊँगा, वही जैसे ये इसने कहा प्रेशियस ने, ऐसे ही वो वर्ड यूज़ कर रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि इट्स एक्सटेंडेड टीवी सीरियल, समथिंग लाइक दैट ही टोल्ड मी। फर्स्ट दैट वाज़ हिज इंप्रेशन। फिर ही एक्चुअली स्पोक टू हुमायूं आल्सो, और उसने भी उनको ऐसे ही कुछ फीडबैक दिया कि यार थोड़ा आप लोग मतलब इट इज़ वेरी पाकिस्तानी सेंट्रिक, एंड अगर मतलब व्हाट ही मेंट वाज़ कि अगर आपको एक लार्जर ऑडियंस चाहिए, so you will have to come out from that. This is good for Pakistani audience, he said, and you know everybody will connect to it, but अगर थोड़ा सा वो डायलॉग वगैरह चेंज करे और आप लोग ऐसा कुछ करें, so it will be good for the larger audience. ये पहला उसका impression था. Then after a couple of days when he saw that the box office में दोनों फिल्में सक्सेस हुई है, then his attitude totally changed. फिर वो मुझे कॉल करता है 2 दिन के बाद में, और मुझे बोलता है कि यार ये तो बहुत चल रही है फिल्में, दैट मीन्स देयर इज अ मार्केट।
मैंने उसको बोला यार डेफिनेटली अगर मार्केट है तभी तो चल रही है ना, आई मीन वो बोलते नहीं नहीं यार शायद मे बी द ईद के बाद में ना दैट्स व्हाई पीपल आर गोइंग। मैं बोला देखो ईद के बाद हो जो भी हो पीपल वॉच एंड वॉच, द बॉटम लाइन इज एक बार फिल्म चली चली, फिर ये कोई नहीं देखता है 2 साल बाद की ईद के बाद रिलीज हुई थी क्या रिलीज हुई थी। बॉटम लाइन इज इट वर्कड एंड द बॉटम लाइन इज सक्सेस। This guy completely changed and now he is going to work in a project with some Pakistani guy and he's looks, क्योंकि देखिए बॉटम लाइन इज पैसा होता है एंड ही सॉ दैट कि अब पैसा आ रहा है तो नाउ ही जो पहले क्रिटिक था नाउ ही इज लाइक प्रीटी मच planning to work with Humayun and doing a film with Pakistani, because देखो एंड ऑफ द स्टोरी बॉटम लाइन ये सब इट्स ऑल अबाउट मनी। प्रोड्यूसर पैसा लगाता है इसीलिए लगाता है क्योंकि उसके रिटर्न्स आने चाहिए। और काफी लोग हैं ना नॉन पाकिस्तानीज वो इन्वेस्ट नहीं करते थे पाकिस्तानी इंडस्ट्री में बिकॉज दे वर नॉट श्योर कि ये पैसा आएगा नहीं आएगा, ये मतलब हाउ द होल प्रोसेस विल बी, बिकॉज थोड़ा सा इंप्रेशन उनका था कि मे बी वी विल नॉट गेट द डिस्ट्रीब्यूशन है जो भी उसके मैकेनिज्म्स होते हैं। दैट हैज रियली चेंज आफ्टर दीज टू मूवीज बिकॉज उसका ओवरसीज कलेक्शन बहुत अच्छा हुआ है। सो आई वुड लाइक टू शेयर क्योंकि मैंने खुद पर्सनली नहीं देखी फिल्में हैं बट व्हाट आई हर्ड एंड व्हाट आई सॉ इज इट्स वेरी गुड क्योंकि एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव ये आया है इससे बिकॉज दे हैव मेड मनी एंड वंस पीपल मेक मनी एंड बॉलीवुड भी देखिए ऐसे ही चलता है। इट डजंट मैटर हाउ बैड द एक्टर इज, फिल्म चल गई। सो आई एम नॉट सेइंग कि पाकिस्तानी फिल्म्स आर बैड और एनीथिंग बट बॉटम लाइन इज कि दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर पाकिस्तानी मूवी इंडस्ट्री। थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैम, हम आपका पॉइंट बिल्कुल इस पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन अमजद हैं और असद हैं, तो इनका पॉइंट लेके और अली ने मेरे ख्याल से ट्रेलर देखी थी, वापस अस्सलाम बात से वालेकुम। बात करें। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। मेरी अमजद पॉइंट बोलिए। सिंपल है, बाकी भाई ने जो बात की है तकरीबन ऑलमोस्ट एग्री हैं। हमें अपना कल्चर प्रमोट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ कॉपिंग समवन अदर कल्चर। हमारे कल्चर में इतना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इतना कंटेंट है कि हम उस पर अगर वर्कआउट करें और बेसिकली न्यू टेक्नोलॉजी अप्लाई करें, इनोवेशन अप्लाई करें, इन्वेस्ट करें तो बहुत कुछ हो सकता है। नॉर्दर्न एरियाज़ है, आप इंग्लिश हॉलीवुड मूवीज़ देख लें वो किस तरह शूट होती हैं, इसी तरह यहाँ पर हम मतलब उसकी प्लेस मार्केटिंग, सो मैनी मैनी थिंग्स वी कैन डन अगर हम अपना नैरेटिव, अपना जो कल्चर नैरेटिव है, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे तो यहीं के लोगों ने देखनी है ना। अगर यहाँ के लोग पहले तो यहाँ की ऑडियंस है और एक लातादाद है, इंडियन मूवीज़ जो हिट होती हैं तो वहाँ के लोकल लोग उसको पहले प्रमोट करते हैं, उसके बाद वो बाहर निकलती है। तो ये मेरा पॉइंट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। असद गिल साहब क्या कहेंगे? प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए अमजद। Ji, thank you very much. I sort of agree with whoever the last, I think Sam साहब थे जो बोल रहे थे. End of the day, it is about making money, and if they produce good content, it will definitely make good money. But जो इसमें जो मेजर शिफ्ट आया है ना जी, सैम साहब थे अगर आप जो बोल रहे थे, तो वो शिफ्ट ये आया है जब विद द एडवेंट ऑफ दिस न्यू सिनेमास, ये जो एक ये नहीं सिनेमैक्स के पैक के जो different kind of cinema that have been springing up. तो ये सिनेमास जब से आए हैं तो फिर वो जो है दोबारा से ट्रेंड पैदा हुआ है मूवीज का, बिकॉज वो जो पुराने सब्जेक्ट्स थे वो भी लोगों ने थोड़ा सा मतलब वैसे अबैंडन किए हुए थे. मेन स्ट्रीम जो है मीडिया में उनको कोई वो भी नहीं मिल रही थी recognition. So people came up with new ideas, new cinemas. So there were a few factors, contributing factors that led to sort of reviving the revival of our cinema industry. But still, I feel that there is a lot of room. They need to select their stories carefully, the stories that they want to sort of filmize. और topics बहुत हैं. If the right people with the right skill set and right resources come to the business, there is a ton of money to be made in this industry. I personally feel. Thank you so much. जी, बहुत शुक्रिया। मेरे पास नाम है, नाम कैन यू गो अहेड एंड देन आई विल गो टू मीशा एंड देन अब्बास बिलग्रामी साहब एंड वाहवद आबिदा। So Misha, could you sorry, Naam, could you go ahead first and then I'll go to Misha. Assalamu alaikum everyone. Thank you for जी वालेकुम सलाम। जी गो allowing अहेड। me to speak on this. मैं अभी अभी 2 घंटे पहले मूवी देख के आ रहा हूँ, लंदन नहीं जाऊँगा. अरे वाह। एंड आई फेल्ट कि द मूवी वाज वेरी गुड. उस पे मूवी वाला फील था एंड स्टोरी वाज वेरी गुड, द डायलॉग्स वर गुड
एक्टिंग आई थिंक हुमायूं सईद है कि ये बेस्ट परफॉर्मेंस है मेरे हिसाब से. शाबाश. And Kubra Khan was also very good, and Mehwish Hayat. But I felt that one thing that was lacking was the music, because I didn't came out of the cinema singing any of the song. So एक जो चीज़ थी that I felt जो इम्प्रूव होनी चाहिए थी, दैट वाज द म्यूजिक ऑफ द फिल्म. वरना ओवरऑल इट वाज वेरी गुड. इंशाल्लाह परसों जाके मैं वो देखूंगा कायदे आज़म जिंदाबाद. एंड फिर उसको देखेंगे कि वो कैसी है. आई थिंक हमारी इंडस्ट्री जो है अच्छी फिल्म्स बना रही है, बट वन थिंग दैट वी लैक इज़ द कंसिस्टेंसी. हमारे यहाँ ईद पे रिलीजेस होती हैं, हमारे यहाँ नॉर्मल हर महीने कोई ऐसी फिल्म्स नहीं आती. और जब तक ये कंसिस्टेंट नहीं होगा ना, तो इंडस्ट्री हमारी कंसिस्टेंटली ग्रो नहीं करेगी. सो आई फील कि अब हमारे यहाँ प्रोड्यूसर्स को और जो लोग फिल्म्स बना रहे हैं उनको बाहर आना चाहिए इस चीज़ से कि वो अ, सिर्फ ईद की रिलीजेस या कोई बड़ा न्यू ईयर आ रहा है या कोई इस तरह की चीज़ आ रही है, सिर्फ उसी पे रिलीज ना करें. अब वो एक रेगुलर इसको एक थिंग बना दें कि हर 2 महीने में हर महीने में 2-3 फिल्म्स आएँ, ताकि लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, वो अपनी मर्जी की सेलेक्ट करें फिल्म और अब वो जाएँ और ये कल्चर डेवलप हो. सो आई फील जब तक पाकिस्तान 50-60 फिल्में साल की नहीं निकालेगा, अच्छी फिल्में, तब तक ये रेगुलर थिंग नहीं बनेगी हमारे लिए. हम लोग बहुत अरसे के बाद कोई अच्छी फिल्म आती है तो जाकर देखते हैं. तो दिस वाज माय टेक ऑन ऑल ऑफ दिस, बट इंशाल्लाह आई थिंक कि चीज़ें चीज़ें बेहतर होंगी. और एक और पॉइंट ये कि आई थिंक कि हमारी कास्टिंग जो है ना, सबने अपने अपने ग्रुप्स बना लिए हैं. हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता कि अली जफ़र, फवाद खान, शान शाहिद, ये 3 बिग स्टार्स मिल के कोई मूवी बनाएँ या इनको कोई कास्ट करे अपनी फ़िल्म्स के अंदर. हमारे ये छोटे-छोटे सेक्शन बन गए हैं, फ़ाहद मुसम्मा, हुमायूं सईद को साथ देखते हैं, या हम शहरियार मुनव्वर को माहिरा खान के साथ देख लेते हैं बार-बार. सो हमारे यहाँ अब ना कास्टिंग भी बड़ी होनी चाहिए. जितने बड़े लेवल पे कास्टिंग होगी, क्योंकि फ़िल्म की हाइप भी उतनी ज़्यादा बनेगी, एंड देन ऑब्वियसली लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा. जैसे एक मौला जट एग्ज़ाम्पल है जिसमें हमज़ा अली अब्बासी है, फवाद खान है, माहिरा खान है. सो लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं, ऑल्दो हमें नहीं पता कब आएगी वो फ़िल्म, बट लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं उस फ़िल्म को, बिकॉज़ द कास्ट इज़ बिग. सो आई फ़ील ये भी हमें करना चाहिए. So this was my अच्छा take जी. on all of this. Thank you guys for letting me speak. थैंक यू. नाम आपने अपने थॉट्स शेयर किए. 2-3 बातें मैं यहाँ पे करती चलूँ, इसके बाद मैं मीशा को बोलूँगी कि वो प्लीज़ अपनी अपनी थॉट शेयर करें, और फिर अब्बास साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी. इसमें 2-3 चीज़ें हैं. 50-60 फ़िल्में तब बनती हैं जब स्क्रीन्स होती हैं. हमारे मुल्क में स्क्रीन्स नहीं है, टोटल 150-200 स्क्रीन्स हैं. ये भी मैं ज़्यादा बता रही हूँ आपको, मतलब एहतियातन. तो जब 50-60 फ़िल्में तभी बनती हैं जब प्रोड्यूसर को लगता है कि मैं अगर एक फ़िल्म में 5 से 10 करोड़ रुपए लगा रहा हूँ, तो वो मुझे यकीन है कि वो एक्स नंबर ऑफ स्क्रीन्स पे लगेगी और मुझे तकरीबन 20 करोड़ देगी. क्योंकि देखें, जो प्रोड्यूसर पैसा लगाता है, वो पूरा का पूरा, जो फिल्म लेट से 10 करोड़ की फिल्म उसने लगाई और 10 करोड़ में बिक गई, 10 करोड़ का बिजनेस किया, वो 10 करोड़ उसकी जेब में नहीं आता. बीच में सिनेमा ओनर आता है, बीच में डिस्ट्रीब्यूटर आता है, बीच में स्पॉन्सर्स आते हैं, बीच में और बहुत सारे एक्स्ट्रा खर्चे आते हैं, जिसका वो कोई, हाँ, मतलब जिनकी एक अलग ही मैथ्स होती है. सो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्क्रीन्स बने. इट्स अ विशियस साइकिल. बट आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान में कल्चर डेवलप होना चाहिए. क्यों नहीं डेवलप हो रहा है, इसकी मैंने थोड़ी सी आपको एक बैकग्राउंड दिया है. दूसरी बात आपने की कि ये कैंप्स बने हुए हैं. जब छोटी इंडस्ट्री होती है तो कैंप्स बन जाते हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है तो भी कैंप्स बन जाते हैं. बहुत अर्से तक सलमान और शाहरुख ने इकट्ठे काम नहीं किया था. यूएस में, हॉलीवुड में, आई एम श्योर सैम बैठे हैं यहाँ पे, उन्होंने हॉलीवुड में काम वगैरह भी किया है, तो वो भी आपको इस पे वेरीफाई करेंगे कि वहाँ पे भी मैग्नेट्स होते हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, यानी बड़ी कंपनीज होती हैं जिनके कुछ पेट लोग होते हैं जिनके साथ वो काम करते हैं. तो ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है. बट आपकी बात बिल्कुल ठीक है. मौला जट बाय द वे सितंबर में अपेरेंटली आ रही है, तो वी विल होपफुली गेट टू सी इट. एंड एंड ऑफ सितंबर, आई बिलीव 30 सितंबर को इसकी रिलीज है, तो इंशाल्लाह उसको हम देखेंगे. अब अब्बास साहब वाहवद यहाँ पे हैं, आबिदा हैं कोई, वो मौजूद है? मैं उनसे बात कर लूँ, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ. जी आबिदा, कहिए. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. मैंने वालेकुम बस सलाम. 2 छोटी-सी बातें करनी थी. एक मैंने ये कहनी थी कि यहाँ पे जैसे भी कितने लोगों ने पाकिस्तानी कल्चर के बारे में बात की, तो पाकिस्तानी कल्चर में कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, कुछ बुरी भी होती हैं. बुरी चीज़ों पे फिर सब उसे कहते हैं इसको बैन कर दें, ये नहीं देखना, ये गलत है, और अच्छी चीज़ों को खुशी-खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं. मुझे लगता है ये बात भी गलत है. दूसरी, मुझे लगता है कि फ़िल्म प्रोड्यूसर्स को कास्टिंग के लिए नए लोग
लाने चाहिए हर उसमें एज के। ये टीवी एक्टर्स को बार-बार देखने से अब काफ़ी मतलब दिल नहीं करता। अब घर में भी हर वक़्त उन्हें देखना, फिर सिनेमा भी जाके उन्हीं को देखना पड़े, बस यही कहना था। अच्छा ठीक है, थैंक यू। लेकिन मसला ये है कि हमारे पास एक्टर्स उस तरह है नहीं, और सिनेमा के लिए जब कास्ट किया जाता है तो नोन फेसेस को कास्ट किया जाता है। अलबत्ता नए लोगों को वाक़ई मौका मिलना चाहिए। मीशा को मैं देना चाहूँगी माइक। मीशा बहुत देर से वेट कर रही हैं। जी मीशा, क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम थैंक वालेकुम। यू मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मैंने अभी जॉइन किया। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था, मुझे उस पे आप लोगों की ओपिनियन चाहिए थी कि इज़ इट ओनली मी या फिर आप लोगों को भी ऐसे लगता है कि जो पाकिस्तानी मूवीज़ होती हैं उनके अंदर एक बॉलीवुड का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नज़र आता है। जैसे कलर स्कीम्स में भी, जो आपके सॉन्ग्स पिक्चराइज होते हैं उसमें भी। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट जैसे बोल थी या खुदा के लिए थी, उसमें आपको वो इन्फ्लुएंस नजर नहीं आएगा। आई नो कि वो एक सर्टेन टाइप की मूवीज थी, बट अदरवाइज आपको डायलॉग्स में, या जैसे आपने अभी लफंगे देखा होगा, उसका ट्रेलर आपने देखा होगा, आपको लाइक उसमें जिस तरह आप अपनी हीरोइन को दिखाते हैं या आप अपने हीरो को प्रेजेंट करते हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा आपको एक बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस नजर आता है। तो क्या ये आप लोगों का इसके ऊपर क्या ओपिनियन है कि क्या हम इतने ज़्यादा उनसे इंस्पायर्ड हैं कि हम उससे निकलना नहीं चाहते, या हमें लगता है कि यही वो फॉर्मूला है कि इसी से हमारी मूवी सक्सेसफुल होंगी? थैंक यू। Okay, थैंक यू। can I वन answer? या Mavish, सदफ आप, जी सदफ आप बात कीजिए, उसके बाद अहमद अब्बास साहब आप ले लीजिएगा माइक। जी okay. जी सदफ। Yeah, I mean, because she asked the question of us, so I think it's के answer करना चाहिए। और उनका question बहुत अच्छा है, क्योंकि there are two thoughts on this। एक तो चाहे हम कितना भी डिनाई करें, ब्रिटिश इंडिया एक था, इंडिया पाकिस्तान, सो इट्स अ शेयर्ड लिटरेरी, और वो everything was in Urdu, right? So it's a shared literary history. हम लोग मिर्जा what was that movie, मिर्जैया, हम लोग नहीं बनाई, we didn't make that, right? Now that is based on a Muslim protagonist। मैं उसका नाम भूल गई हूँ, what was it जिसमें हर्षवर्धन था etc, but they see it as a part of their culture। लेकिन हम लोग कुछ अलग मखलूक तो नहीं है ना, we are out of a certain context। सो थोड़ा सा बॉलीवुड का असर तो होगा, ऑब्वियसली वो नेबर्स भी हैं एंड ओवरवेलमिंग नेबर्स। कि अगर मुझे कई बार हंसी आती है, आई वाज इन अ ग्रुप द अदर डे, तो वो कह रहे थे अच्छा इंडिया की डेवलपमेंट पाकिस्तान की डेवलपमेंट, ने कहा आप साइज को मैच करके देखें ना, जिसके साथ आप मुकाबले लगा रहे हैं, राइट? एंड देन मेक अ डिसीजन कि पाकिस्तान और इंडिया के साइज में कितना फ़र्क है, पॉपुलेशन में, रिसोर्सेज में, एंड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। सो नंबर वन, दैट there is a very shared literary cultural history। नाउ वो अलग बात है कि वो थोड़ा सा बॉलीवुड अब वेस्टर्नाइज्ड हो गया तो हमें चिढ़ होती है, बट द लिटरेरी उर्दू रूट्स एंड कल्चर आर स्टिल सिमिलर। दैट्स व्हाई यू विल सी दो सिमिलैरिटीज, एंड मेरे ख्याल से वो दैट इज नॉट रॉन्ग। इफ यू लुक एट ओल्ड पाकिस्तानी मूवीज, आई डोंट नो, मे बी आई एम ओल्ड, मैंने पुरानी पाकिस्तानी मूवीज कुछ देखी हैं, तो यू कुड सी दे ऑलवेज हैड दिस सॉन्ग डांस, देयर वाज दिस काइंड ऑफ गिव एंड टेक, and between India and Pakistan then as well। I would recommend someone to watch the Pakistani version of Devdas। It's excellent। वो चली नहीं बॉक्स ऑफिस पे in the 60s or 50s when it was made, black and white है, but it's very good and very comparable to the Indian Devdas। सो वो है, तो एक्सपेक्टिंग कि हम बिल्कुल एक कोई नई एक दुनिया बना लेंगे, कोई नई कैरेक्टर्स ले आएंगे, कोई नई एक कॉन्टेक्स्ट ले आएंगे, आई डोंट थिंक दैट्स गोना हैपन। बट हाँ, वी कैन एम्फसाइज के व्हाट इज आवर हेरिटेज, के भाई वी इट्स स्लाइटली मोर इस्लामिसाइज्ड, इट्स स्लाइटली मोर Persianized, it's slightly more, there's other influences। So and there is also a Hindu influence in Pakistan as well, which we shouldn't deny, right? Because that they are also our citizens। So ये चीज कि हम कोई अलग से कोई चीज बना लाएंगे वो ठीक है, but then it shouldn't be a straight out copy। I don't know if I've communicated well enough। माविश आप बताएं। माविश चली गई हैं। नहीं नहीं, मैं यही हूँ, सॉरी। जी अब्बास बिलग्रामी साहब क्या कहेंगे? जी गो अहेड। जी, thank you so much, Mavish and Sadaf.
देखिए मेरा चूँकि थोड़ा-सा ताल्लुक़ है इस इंडस्ट्री से, तो मैं आपको उस हवाले से कुछ बातें, मुख्तलिफ़ बातें हो रही हैं। ज़ाहिर-सी बात है, जो व्यूअर है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर बात कर रहा होता है। पाकिस्तान के अंदर जैसे आपने खुद भी मेंशन किया, तकरीबन 160-65 स्क्रीन्स होंगे, 135 सिनेमाज़ हैं। एवरेज ले लीजिए तो 300 की कैपेसिटी है पर सिनेमा। पाकिस्तान में रोज़ कोई 50,000 लोग फ़िल्म देखते होंगे अगर एक फ़िल्म लगती है। अगर हफ्ता चल जाए तो 7 लाख लोग देख लेते हैं इस फ़िल्म को। इंडिया के अंदर 9,500 स्क्रीन्स हैं। तो ये तकरीबन 3 मिलियन लोग देखते हैं एक दिन के अंदर। सो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कितना बड़ा फ़र्क है दोनों साइज़ में। जहाँ बात आपने कही कि इंडियन सिनेमा से इंस्पायर्ड है, मेरा थोड़ा-सा मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान में चूँकि फ़िल्म स्टार्स नहीं हैं, फ़िल्म डायरेक्टर्स नहीं हैं, ये सारे टेलीविज़न से आए हुए लोग हैं, छोटे स्क्रीन से बड़े स्क्रीन पर आते हैं। बड़ा फ़र्क है दोनों स्क्रीन्स के अंदर, एक्टिंग में भी और उसके उसके ट्रीटमेंट में भी। यही मसला हमने मिडल ईस्ट में भी देखा, जहाँ लेबनान जो है वो टेलीविज़न इंडस्ट्री को राज करता है इन द अरबिक प्रोग्रामिंग। बट फ़िल्म नहीं बना पाता। उनके पास बहुत खूबसूरत लोग हैं, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, बड़े अच्छे डायरेक्टर्स हैं, बट वो फ़िल्म में इतना आगे नहीं है। उसके मुकाबले में इजिप्ट एक बेहतरीन फ़िल्म मेकिंग कंट्री है। पाकिस्तान में जो मुझे नज़र आता है, और हमने बहुत से काम भी करना शुरू किया इसके ऊपर, हमने पाकिस्तान के फ़िल्म अवार्ड्स के ऊपर काम करना शुरू किया, जो कि 2004 के बाद से हुए नहीं थे नेशनल लेवल के ऊपर। अ ये बड़ा मुश्किल काम है, चूँकि अगर आप उस टाइम से लेके आज तक का देखें तो कितनी फ़िल्में बन चुकी हैं, तो हमें अल्टीमेटली 2011 से लेके 2018 तक की फ़िल्में लेनी पड़ी, जिसमें 400 पाकिस्तानी उर्दू फ़िल्में थीं। अब 400 फ़िल्मों को देखना जूरी के लिए बड़ा मुश्किल काम है। सो आपको फिर कहीं और से शुरू करना पड़ेगा ये काम। दूसरा जो सबसे बड़ा इश्यू है वो है एकेडमी का। दुनिया में जहाँ फ़िल्म अच्छी बनती है वहाँ पे फ़िल्म एकेडमी होती है। हमारे यहाँ फ़िल्म एकेडमी एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। हमारे यहाँ जो बाकी तरह से जैसे गाड़ी के वर्कशॉप पे काम करने वाला लड़का मैकेनिक बन जाता है, हमारे यहाँ लोग इसी तरह से टेलीविज़न या शायद और दूसरे किसी जगह से आके फ़िल्म में काम करते हैं। थिएटर भी नहीं कर रहे होते वो लोग, चूँकि एक बड़ा बेसिक सा रिक्वायरमेंट है किसी भी फ़िल्म के लिए। इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। आई डोंट थिंक कि इस वक़्त हम उसके अपने आप को किसी भी तरह से कंपेयर कर सकते हैं। आपने जैसे कहा 14-15 करोड़ में फ़िल्म बन जाती है, अगर 20 कर लेती है तो लोग थोड़ा-सा पैसा लेके खुश हो जाते हैं, और उसमें भी डिवीज़न होती है। तीफ़ा में अली ज़फ़र ने क्लेम किया था 65 करोड़ का मेरे ख़्याल से। वो डिस्ट्रीब्यूटर और दूसरे जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनमें शेयर होता है। फ़िल्म की मार्केटिंग के लिए कोई काम नहीं करता जिस तरह से होना चाहिए। एक फ़ॉर्मूला है, उसी फ़ॉर्मूले पे काम हो रहा होता है। आई एम वर्किंग विद समबडी एट द मोमेंट, जो कि पहला पाकिस्तानी प्रोजेक्ट है विद द चाइनीज़ फ़िल्म मेकर्स। एक फ़िल्म बन गई है जो कि रिलीज़ भी होगी। बट ये बड़ा ज़रूरी है जॉइंट फ़िल्म बनाना दूसरे मुल्कों के साथ। इससे सीखने को बहुत मिलता है हमें। ऑल्दो कल्चरली तो वो हमें नहीं समझ पाते इतना, लेकिन जो टेक्नीक्स हैं उनकी वो बहुत बेहतर है हमसे। सो हमें सबसे पहले तो ये है कि हमें इदारे बनाने पड़ेंगे जो हमारे यहाँ लोगों को फ़िल्म सिखा सकें। थिएटर और टेलीविज़न तो ज़िया साहब सिखा ही रहे हैं नापा में, लेकिन उसके अलावा फ़िल्म पे आप देखिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है अभी तक जो आई नहीं है। सो लोगों ने कोशिश की है, बट इसके लिए पैसा चाहिए है, और वो लोग ही पैसा लगाएँगे जिनको पैसा उसके ऊपर वापस रिटर्न भी मिले। सो फ़िल्म के ऊपर अभी तो इट्स नॉट अ वेरी फ़ीज़िबल प्रोजेक्ट जिसके ऊपर पैसा वापस लग सकता है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। वही सारी बातें हैं, और आई थिंक आपका ताल्लुक भी है इंडस्ट्री से, सो आपको ज़्यादा मालूम भी है कि प्रोड्यूसर के क्या कंसर्न्स होते हैं। सैम और अली ने बहुत देर से हाथ उठाया हुआ है। अली आप बोलें प्लीज़, और फिर सैम आप शेयर कीजिए। Sam, let Sam go first, please. श्योर श्योर, नो प्रॉब्लम। सैम आप बोलें। ओके, थैंक यू अली। मैं कुछ लोगों ने कुछ पहले कुछ कमेंट्स किए थे, जस्ट वांटेड टू से माय व्यूज ऑन दैट। देखिए, एक चीज़ है कि जैसे अभी किसी ने कहा कि बॉलीवुड इन्फ्लुएंस है। वो तो होगा ही ना, बिकॉज़ देखिए अगर आप दिलवाले दुल्हनिया आपने देखी तो हाउ एनीबॉडी फ्रॉम पंजाब वुड आइडेंटिफाई विद दैट। पंजाब का तो एक कॉमन ही कल्चर है। आई मीन एनीबॉडी इन साउथ इंडिया जो है वो दे वुड रियली नॉट रिलेट टू दैट। अ पर्सन इन लाहौर विल रिलेट मोर टू दिलवाले दुल्हनिया ले जाए
देन अदर पार्ट्स। तो वो तो एक जाहिर सी बात है। सो दैट वी हैव द कॉमन हेरिटेज। अभी हीर रांझा और ये जितने भी आपके ससी पन्नू और जो भी है जो भी हमारे हैं, तो कॉमन हेरिटेज है, उसी से फोक बना है, तो वो तो होगा ही। अच्छा, दूसरा, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट देयर इज अ वेरी स्ट्रांग एलिमेंट इन इंडिया जो सोचते हैं कि बॉलीवुड में एक्चुअली उर्दू इन्फ्लुएंस ज्यादा है। तो देयर इज लाइक अ राइट विंग हो जो बॉलीवुड को उर्दू वुड बोलता है। आई डोंट नो, यू गाइस विल बी सरप्राइज। तो ये तो तबका हमेशा होगा ही। सो इसको तो इग्नोर कर देना चाहिए। जहाँ तक देखिए इसकी बात है, किसी ने बोला कि वो अब देखिए बॉलीवुड भी जब स्टार्ट हुआ था, इट व्हेन रियली इट ओपनड आउट। जब फ़िल्में यहाँ पे भी दे वर बेसिकली सेलिंग इंडियन कल्चर जब शुरुआत हुई थी। आप देखिए दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे या मॉनसून वेडिंग, ये घिसे-पिटे ही थे। शादी हो रही है एंड शादी में वो घर वाले वो क्या थी कहानियाँ, दे वर बेसिक हम आपके हैं कौन? ऑल वर वेडिंग्स बेसिकली। वो घर की शादी है और उसी को वो लोग बेच रहे थे, बट इट सोल्ड वेरी वेल। तो अगर पाकिस्तानी भी टू स्टार्ट विथ, अगर इफ इट इज़ वर्किंग, कुछ बुराई नहीं है उसमें। अगर लोग देखना चाहते हैं तो दे विल वॉच इट। क्योंकि अगर जब नहीं देखेंगे तो इंडिया में जैसे हो गया, एक पॉइंट आ जाएगा सैचुरेशन पॉइंट, अब वो लोग बोलेंगे ये बहुत हो गया, अब नहीं देखना। दैट इज द पॉइंट वेयर पाकिस्तानीज विल हैव टू कम आउट ऑफ द बॉक्स एंड स्टार्ट एक शोइंग अनदर एस्पेक्ट ऑफ योर कंट्री। जो ऐसे कहानियां बाहर आएंगी, लेकिन उसके लिए एक इनिशियल पुश की जरूरत होती है, जो मुझे लगता है कि अभी मिल रही है। और ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। लाइक यू कैन नॉट गो ऑन लंदन नहीं जाऊंगा, दुल्हन ले जाऊंगा, दैट विल नॉट लास्ट फॉर एवर, हम सब जानते हैं। बट एक इनिशियल आपको पुश मिल गया है, तो दैट उसको कैपिटलाइज करना, ये अभी आगे वाले लोगों के ऊपर है। और एक पॉइंट मैं और आगे सिर्फ कहूंगा। और किसी ने कहा कि भाई वो यही इनके चेहरे दिखते हैं घिसे पिटे टीवी सीरियल वाले हैं। तो देखिए उसको आप कॉन्डिसेंडिंग मत होइए, ये आपके असेट्स हैं, लोग इनको जानते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आज हुमायूं सईद की वजह से दुनिया जानती है पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज को। डोंट बी नेगेटिव अबाउट इट। फवाद को आज जानते हैं पूरी दुनिया, भले वो टीवी सीरियल में है, आपको ऐसे लगता है कि नहीं ये तो मेरे फुप्पा का बेटा ही है। बट बट ही इज नोन टू एवरीबडी। सो भले वो आपके लिए रोज की बात होगी, बट यू शुड रियली चेरिश दैट, क्योंकि आज दुनिया उसको जानती है। एवरीबडी नोज, इवन नॉन पाकिस्तानीज आर लर्निंग अबाउट दिस पीपल। तो प्लीज उनकी आप लोग कदर कीजिए। एंड उनका अगर दे आर स्टिल देयर, एज लॉन्ग एज दे आर डूइंग वेल, उसमें कोई बुराई नहीं है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर यंग पीपल विल कम, एंड दैट इज अ वेरी ग्रेजुअल एंड अ नेचुरल प्रोसेस जो होगा इंशाल्लाह। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर, ग्रेट थिंग्स यू सेड सैम, डेफिनेटली वांट टू टॉक अबाउट इट मोर। बट अली बोलिए आप, और फिर प्रेशियस आप अपने पॉइंट्स लीजिए, हम इसको थोड़ा रैप अप भी करेंगे क्योंकि आई वांट टू हियर बैक फ्रॉम सदफ एंड जी अली। ओके। जी, तो हाँ, मैंने दोनों ट्रेलर्स देखे और इंटरेस्टिंग है। एंड गिवन अ चॉइस आई वुड चूज द लव स्टोरी जो लंदन नहीं जाऊंगा है, क्योंकि वो जो एक्शन मूवी जो है कायदे आजम पर, दैट लुक्स आई डोंट नो, नॉट वेरी इंटरेस्टिंग। और जो दूसरे लोग पॉइंट आउट कर रहे थे कि इंडियन मूवीज की कुछ झलकियां पाकिस्तानी मूवीज में दिख रही हैं, बट देन दैट इज ऑलवेज बीन द केस ना। इवन आप अगर इंडियन म्यूजिक को देख लें, तो वो पाकिस्तानी म्यूजिक के कहीं ना कहीं और दुनिया के और जगहों के म्यूजिक से मिलता है। आप अगर इंडियन मूवीज की जो अम, मतलब क्या बोलना चाहिए, सुपर हीरो टाइप एक्शन देख लें, दैट इज ऑल कम फ्रॉम मैट्रिक्स जो 19 शायद 99 में निकला था। तो ये सारी चीजें तो लोग एक दूसरे को, जब क्रिएटिव फील्ड है, तो आई डोंट नो, इट्स अ वेरी लार्ज वर्ड, मगर एक दूसरे से इन्फ्लुएंस और होते हैं, तो दैट्स ऑल ओके। और इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा है। मैं हम जब, मतलब दिस इज रियली लॉन्ग टाइम अगो, हम जब कैसेट्स हमारे रिलेटिव्स, वीसीआर की बात मैं कर रहा हूँ, जब हमारे रिलेटिव्स गल्फ में रहते थे, तो दे यूज टू गेट पाकिस्तानी ड्रामास। तो धूप किनारे और दिन के कैसेट्स आते थे और फिर हम उनको वीसीआर पे देखते थे। तो जब से आई अंडरस्टूड कि पाकिस्तान में जो है टीवी इंडस्ट्री बहुत आगे है और मूवीज उतना आगे नहीं है, और बहुत जबरदस्त टीवी सीरीज वो टाइम पे भी होती थी, और हो सकता है अभी भी हो, हमें ज्यादा देखने नहीं मिलती। मगर या तो डेफिनेटली जैसे सैम ने कहा है, इट्स इट्स अ फेज वेयर पैसे कमाना है, इंडस्ट्री में पैसे आना है। और जब पैसे आएंगे तो छोटी इंडिपेंडेंट मूवीज भी बनेंगी,
जो कि बिल्कुल जैसे कोई कह रहे थे कि पाकिस्तानी कल्चर और अलग अलग कल्चर जो पाकिस्तान के अंदर है उनको दिखाएंगे, तो डेफिनेटली, क्योंकि इंडिया में भी पहले ये ऐसे ही था कि कोई ब्लॉकबस्टर दिलीप कुमार वगैरह का जमाना था, और फिर जब ये 70s में सो कॉल्ड पैरेलल सिनेमा आया, तो ये जो नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी वाले जो मूवीज आए, दैट विल डेफिनेटली हैपन। मगर पहले इंडस्ट्री में पैसा आना चाहिए। देखिए, ये जो माइंडलेस ब्लॉकबस्टर्स होते हैं ना हर इंडस्ट्री में, इवन आप अगर हॉलीवुड में देख लें, तो ये जो बिल्कुल जो माइंडलेस ब्लॉकबस्टर्स टाइप होते हैं कि एक लोन हीरो है, लोन रेंजर टाइप ऑफ अ थिंग, मगर उसमें ये होता है कि इंडस्ट्री में वापस बहुत सारा पैसा आता है। अब यहाँ पर जो सलमान खान की मूवीज हिट होती हैं, आई वुड नॉट पर्सनली लाइक इट, मगर वो जब पैसा अंदर आता है इंडस्ट्री में, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, एग्जिबिटर्स के पास, सारी इंडस्ट्री में जब वापस पैसा आता है, वही पैसा फिर वही डिस्ट्रीब्यूटर्स और वही एग्जिबिटर्स कैन देन यूज दैट लीवे टू शो स्मॉलर फिल्म्स। जैसे हमारे पास एक यहाँ पर एक्टर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। वो कहते हैं, भाई मैं बड़ी फिल्म इसलिए करता हूँ कि मुझे थोड़ा सा नाम मिले और मेरी छोटी फिल्म में चल जाए। इवन इफ यू लुक एट द करियर ऑफ नसीरुद्दीन शाह, वो भी 3-4 साल में एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर देते थे, राइट थ्रू आउट द 80s 90s एंड इवन 2000s। बहुत बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवीज में है वो। तो ही वॉज अ नोन फेस, जिसमें उनकी छोटी फिल्में जो है फिर चल जाती थी, लोग देखने जाते थे उसको। तो डेफिनेटली पाकिस्तानी सिनेमा विल हैव दीज काइंड ऑफ थिंग्स, और ये एवोल्यूशन होगा। और डोंट वरी अबाउट गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम डिफरेंट सिनेमाज, वो तो होगा ही होगा, इट विल ऑलवेज हैपन। और कमर्शियल मूवीज में तो ऑलवेज ये है कि भाई आपको सेफ खेलना है। अगर किसी को कोई मूवी पसंद आ गया, तो उसका बहुत सारा पार्ट आपकी कमर्शियल मूवी में आ जाएगा, और वो जो है फिर वही थोड़ा सा फॉर्मूला भी चलेगा अंटिल वो चलता है। तो दैट विल हैपन। तो थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स ग्रेट। और हमें इंडिया में तो देखने नहीं मिलेगा, बट होपफुली वन डे वी विल सी गुड मूवीज फ्रॉम पाकिस्तान Ali. इंशाल्लाह। Thank you, Ali. That was some good words there, and I think that you made some excellent points. Thank you. Acha, Mavish, is there anyone else who wants to speak? उनको भी मौका दें. आई थिंक मैं रैप अप करना चाहूंगी। जो हमारे गेस्ट स्पीकर्स हैं, प्रेशियस कुछ बोलना चाह रहे थे, उसके बाद हम सदफ अपनी बात हम कुछ कर रहे थे, और ठीक है. फिर अगर कोई एक आध कमेंट, शॉर्ट कमेंट्स अगर किसी को देने हैं तो प्लीज दीजिए। तो I प्रेशियस want to को say माइक a दिया big हुआ था। Yeah, जी I जी। want to say a big thank you to Sam though, क्योंकि मैं I'm sick and tired of हमारे एक्टरों को इतना अपने ही लोग नीचा दिखा रहे होते हैं अपने fraternity के, and you have to go to India and वो उनके hearts are a lot bigger. तो वो I remember being told कि फवाद खान is not a movie actor, but you go to India तो वो कहते हैं हाँ, because they're open minded, he is a movie actor. Same, I hear all this stuff, TV stars, movie stars, all these dialogues by actor hain. That's more than enough, right? And they can make that jump. Khair, go ahead, Mavish. नहीं, बिल्कुल सदफ ऐसा ही है हमारे यहाँ, मुझे लगता है। और हम इसके ऊपर कितनी बात करते हैं कि हमारे यहाँ एक सेल्फ हेट ब्रिगेड है। हमारी एक शायद डीएनए का अनफॉर्चुनेटली हिस्सा बन गया है। और सेल्फ हेट एक ऐसी चीज़ है जिसका इलाज सालों बाद होता है, क्योंकि उसका डायरेक्ट ताल्लुक आपकी आइडेंटिटी से होता है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का नेशनलिज्म जो है एक फेल्ड प्रोजेक्ट है, बिकॉज हमारे यहाँ उस तरह नेशनलिज्म हमें, और दो उस पे हमारे लिबरल्स हमें बड़ी गालियाँ देते हैं कि ये नेशनलिस्ट है और ये वो है, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बीइंग अ पाकिस्तानी या हैविंग अ पाकिस्तानी आइडेंटिटी इज कंसिडर्ड समथिंग बैड। तो honestly, I feel like it will just take some time. We'll just have to kind of keep speaking our truths and keep like having discussions like these, and just keep on having those kind of discourses which challenges this kind of myopia, where we have this hate against the culture, hate against the people. Like it's so funny because these people, same people who will say कि हमारा कल्चर नहीं दिखा रहे, वो सेम लोग अपने ही लोगों के, हमारे ही कल्चर के आर्टिस्ट को ट्रैश भी कर रहे होते हैं। सो इजंट इट क्यूरियस कि आप एक तरफ कहते हो कि जी हमारा कल्चर दिखाओ, फिर हमारे कल्चर से ही निकले हैं ये फवाद और ये हुमायूं और ये माहिरा और ये महविश, वो बेचारे आते हैं तो आप उनके ऊपर कीचड़ फेंकते हो। तो वंस एंड फॉर ऑल फिर डिसाइड करें ना क्या चाहिए। अम, मैं बस लास्ट कमेंट्स लूंगी क्योंकि आई वांट टू रैप अप स्पेस। मेरी तरफ से बहुत देर हो गई है। आई गेस आप लोगों की तरफ, आई थिंक यू हैव डे एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर, आई मीन अवेक, but I have no intention of taking the space to like 4 a.m.
Sam wanted to say something, and then Abbas. थैंक यू महविश। जी नहीं, मैं सिर्फ एक ही पॉइंट कहना चाहता था कि देखिए, जहाँ तक टीवी का सवाल है, आप लोगों को पता नहीं कितने लोगों को पता है, शाहरुख खान एक्चुअली स्टार्टेड एज अ टीवी एक्टर। आप लोग, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो हियर, बट ही केम एज अ टीवी आर्टिस्ट। उनके दो सीरियल आए थे, एक सर्कस था और दूसरा एक दो तीन थे एक्चुअली, एक दूसरा केवल, एंड देयर वाज फर्स्ट सीरियल वाज फौजी। He came फौजी। in a TV serial from Fauji, yes, that was his journey. And there was another guy called Sushant Singh Rajput, वो भी टीवी पर आया था पहले, from पवित्र रिश्ता, आई थिंक, मुझे याद नहीं उसका सीरियल का नाम, आई थिंक सो। एंड फ्रॉम देयर ही केम टू, तो उसमें प्लीज डू नॉट बी सो condescending towards एक्टर्स के वो टीवी से आए हैं। आखिर बॉटम लाइन इज, यू लाइक देम, यू विल वॉच देम। वो टीवी से आए, कहीं और से आए, अगर इफ दे आर born with a silver spoon or they are born wherever, जैसे भी दिखते हैं, आप उनकी अदाकारी, उनके कलाकार पे देखकर यू जज देम, नॉट बाय वेयर दे हैव कम फ्रॉम। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब्बास साहब क्या कहेंगे? जी, अच्छा, मैं बिल्कुल सही कहा सैम ने। सिर्फ एक जो डिफरेंस है वो ये है कि जब कोई टेलीविज़न से फ़िल्म की तरफ आता है, तो वो वापस टेलीविज़न की तरफ नहीं जाता। अमूमन ऐसा ही होता है। इसमें हमारे यहाँ मिसाल तो जावेद शेख साहब की मौजूद है, टेलीविज़न से उन्होंने भी स्टार्ट किया था। कवि साहब की भी मौजूद है और बहुत से ऐसे एक्टर्स पुराने भी मौजूद हैं हमारे पास। बट उसमें होता ये है कि टेलीविज़न एक बिल्कुल डिफरेंट मीडियम है फ़िल्म के मुकाबले में। और ये बड़ा मुश्किल हो जाता है एक्टर के लिए कि वो जस्टिस कर सके अपनी एक्टिंग में, जो कि बड़ा मुश्किल होता है। दो स्क्रीन्स को अगर आप देखें तो उनकी टेक्निक्स बिल्कुल डिफरेंट हैं डायरेक्शन की। सो सिर्फ होता यही है, इसकी वजह से प्रॉब्लम यही आती है कि आप वापस टेलीविज़न में, आप फवाद खान की बात की हमने, फवाद खान ने बहुत कम टेलीविज़न किया। और फ़िल्म ज़ाहिर बात है, एक अच्छे एक्टर हैं फ़िल्म के हवाले से। सो बाकी भी आप इंडिया भी उठा लीजिए, शाहरुख वापस नहीं जाते, हाँ शो कर लेते हैं बट ड्रामा नहीं करते। सो ये है, मिसालें मौजूद हैं दुनिया में बहुत सी। तो हमारे यहाँ लेकिन मजबूरी ये, बेचारे फिल्म इतनी बनती नहीं है, तो क्या करें, फिर सर्वाइव करने के लिए टेलीविज़न करना पड़ता है। जी शुक्रिया। सदफ कुछ कह रही थी आप? I was just going to disagree. Fawad has done a lot of television. शायद लोगों ने देखा नहीं, लेकिन हमने देखा है। I think he's talking about तो how he never went back. That's what I think he's trying to say. I think Fawad का Mahira did, Mahira did, Mehwish did. yeah, So many so of them did did. Humayun. All these people have, and I've Yeah. seen big Bollywood actors. So, but I can understand जो वो अब्बास साहब कह रहे हैं, उनका भी एक point of view है, respect that. लेकिन मैं कह रही हूँ कि nothing is set in stone. हम कई बार सोचते हैं कि something is set in stone, कि ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता. और सदफ आपने बड़ी सही बात की है, सेटिंग स्टोन तो नहीं, अब तो लोग ओटीटी पे जा रहे हैं, वो तो सबसे छोटी स्क्रीन Right. है। Yeah. So I think we should keep open mind, but कुछ point है उनका भी दुरुस्त. बिल्कुल Say बिल्कुल जी। I'll let other people speak and then we can. Yeah, I'm just going to take closing comments. Precious wait करें, फिर सना आफरीदी, ये मेरी कॉलेज मेट हैं, बहुत पुरानी जान पहचान है मेरी इनसे। प्रेशियस प्लीज आप बोलिए, और फिर सना की तरफ मैं जा रही हूँ। जी, थैंक यू सो मच। मैं जल्दी से चीज़ों को रैप अप करूँगा और मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा। नहीं, एक्चुअली आप मैं रैप 2 अप ना से करें, वो हमारा काम है, आप अपना कमेंट दे दें। नहीं, मैं अपने कमेंट्स की बात कर रहा था। एक्चुअली मुझे 2 चीज़ें जो ना मुझे ज़्यादा जो है वो पिंच करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोरी। आप देखें, इससे पहले एक स्टोरी हमारे पास माशाल्लाह रिलीज़ हुई, उसमें था कि जी शेर का पॉट चोरी हो गया, वो पूरी मूवी उस पे गुज़र गई, हैं जी। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टोरी आ गई, नोटों पे कायदे-आज़म की तस्वीर नहीं है। लाइक हमें कुछ ऐसी रियलिस्टिक चीज़ों को अगर लाना है, अगर लोगों को एंगेज करना है, अगर आपने एक मूवी को एग्ज़ाम्पल बनाना है, तो आपको स्टोरी पे काम करना पड़ेगा, ठीक है? सेकंड थिंग इज़ दैट कि अब आप पिछले 10 साल में देखें कितनी मूवीज़ बनी हैं, उन सब मूवीज़ में हुमायूं सईद, शान शाहद या इस जैसे 1-2 एक्टर्स के अलावा और कितने एक्टर्स ने काम किया है। तो ये चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इतना फैज़ जिस तरह एक भाई कह रहे थे, मुझे सॉरी उनका नाम भूल गया, कि वो कह रहे थे प्रोड्यूसर पैसा तब इन्वेस्ट करेगा जब उसे उसके रिटर्न का इश्यू होगा कि वो जो हाँ जी रिटर्न होगा, नहीं होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऐसा कोई इश्यू है तो आप मूवी को ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे रिलीज़ कर सकते हैं, या अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप
कम से कम उन शायकीन को मद्देनजर रख के मूवी बना सकते हैं जो कि सिर्फ पाकिस्तानी सिनेमा नहीं देखते, जो कि आपकी किसी भी मूवी को रेट करते हैं, देखते हैं, आपकी सिनेमाटोग्राफी देखते हैं, आपके विजुअल इफेक्ट्स देखते हैं, आपकी स्टोरी लाइन देखते हैं, आपका पूरे का पूरा स्क्रिप्ट देखते हैं, आपने जो करेक्टर्स उसमें बिल्ड किए होते हैं वो उसको देखते हैं। आप छोटी से छोटी एग्जांपल आउटर सिनेमा की देख लें, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इंडियन पंजाबी सिनेमा की मैं पहले एग्जांपल दे रहा था। तो पहले योगराज सिंह और गुग्गू गिल के नाम से ना बड़ी मूवीज बनती थी उनके ना, वो मतलब वो बदमाशी टाइप, वो गुंडा अच्छा, टाइप। मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी। मुझे ये बताइए, आपको इस साल कौन सी फिल्म पसंद आई है? इस साल मुझे जो सबसे बेस्ट मूवी लगी थी वो रिसेंटली इनकी लगी है, जो लास्ट रिलीज हुई है, ये लंदन ही जाऊंगा इससे पहले, और वो भी पाकिस्तानी मूवी नहीं थी, वो दूसरी थी। मतलब इनमें से मैंने जितनी भी मूवीज देखी हैं रिसेंटली, मुझे इतनी खास कोई भी नहीं लगी है, लाइक जिसको अच्छा, मैं कह आपको सकूँ ना। बेसिकली कोई पाकिस्तानी फिल्म पसंद नहीं आई, राइट? बिल्कुल, जो इस ईद पे रिलीज हुई है ना, मतलब 3 से 4 मूवीज रिलीज हुई हैं, इन तीनों में से मैं कह सकता हूँ पहले से काफी बेटर है। इनकी हम्म। सिनेमाटोग्राफी भी पहले से काफी इम्प्रूव आप हुई है। आप आप करते क्या हैं? सॉरी। आप क्या करते हैं? मैं बेसिकली जॉब करता हूँ। नहीं, हम वो तो हम सारे ही करते हैं कुछ, और कुछ उससे आगे की कोई बात बताएं, और क्या करते हैं जिंदगी में? और मैं मतलब वेब सीरीज का मुझे काफी शौक है, वेब सीरीज देखनी होती हैं। अच्छा, एक ठीक है, बात मैं, मुझे अपनी फेवरेट वेब सीरीज बताइए। ओके, फेवरेट वेब सीरीज इंडिया की जो मैंने लास्ट देखी है वो देखी है दिल्ली क्राइम। ओके, ठीक है। अच्छा, और पाकिस्तान में कोई आप टेलीविजन देखते हैं? पाकिस्तान की मैंने इनकी चुड़ैल्स के नाम से जो सीरीज आई थी वो देखी थी। नहीं, पर पाकिस्तान से जो कुछ बना होगा, पाकिस्तान में इतना कंटेंट बनता है, वो कुछ देखा है आपने? पाकिस्तान में मैं टू बी ऑनेस्ट, इनके मैंने जितने भी मूवीज या सीरीज बनती हैं वो बहुत कम है, बेसिकली वही देखता हूँ जिनके बारे में ज्यादा हाइप होती है, या जिनके बारे में हम्म। लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं कि जी ये मूवी लाजमी देखनी चाहिए या इसमें पता नहीं क्या आने वाला है, तो वो फिर ठीक देखनी है। होती है। अदरवाइज इनकी लाइक आइडिया होता है कि इनका कंटेंट क्या होगा या इनकी स्टोरी लाइन क्या होगी। अच्छा, अब पाकिस्तानी ड्रामे आप नहीं देखते? पाकिस्तानी ड्रामा में मैंने लास्ट जो देखा है वो भी देखा है, कैसी है तेरी खुद गर्जी। ठीक है, वो कैसा लगा आपको? और उसकी वो स्टार्टिंग के 2 एपिसोड देख के मुझे आइडिया हो गया था कि अब ये जो माशाल्लाह मीर बाप का बेटा है, अब ये लड़की को हासिल करने के लिए पूरी तगो-दो करेगा और सारा ड्रामा इसी पे है। इस पे पहले जो वो फवाद, सॉरी, इसका क्या नाम है इसका, खान था, फिरोज खान का ड्रामा था, वो जिसमें वो जावर का क्या बन जाता है, वो देखा था, उसकी स्टोरी लाइन भी यही थी। उससे पहले वो जो हानि या क्या नाम है उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, वो भी ऐसा ही था। लाइक इनके पास ये स्टोरी है ड्रामा वालों के पास, और मूवी वालों के पास ये स्टोरीज आ गई। अगर आपने कुछ फनी भी कोड करना है तो आप इस तरीके से करें ना कि शायकीन इंगेज हो, ना कि सिर्फ आप ईद लगाएं और उसके बाद खली बल्ली। अच्छा, और आपको मालूम है कि ये जितने भी ड्रामों के आपने नाम लिए हैं, ये बहुत इंडिया में भी बहुत मकबूल हुए थे, और यूट्यूब पे भी इसके बहुत व्यूज बिल्कुल थे, ऐसे ही है, और बिल्कुल इनके ऐसे ही रेटिंग्स है, भी बहुत आए हैं जी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे तो ही है। मेरे कहने का मकसद ये है कि आप बिल्कुल, आपके अपने व्यूज हैं और मैं उनको रिस्पेक्ट करती हूँ एज योर व्यूज, बट आई थिंक यू आर कम्प्लीटली ऑफ पॉइंट, बिकॉज आप हम्म। जिस तरह की बात कर रहे हैं और आप जिस तरह के सीरीज और वेब सीरीज की जो रेफरेंस दे रहे हैं, वो एट पार हैं with a lot of other stuff that is being churned out day in day ओके। out. And I हम्म। also feel like you need to kind of don't need to look at, I think आपका प्रिज्म ही ये है कि नहीं, ये तो सब टिपिकल ही होता है। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में बहुत ऐसा कंटेंट बना है। मेरे ख्याल से आपने जो बिछड़ गए नहीं देखा, पाकिस्तान से ही प्रोड्यूस हुआ है। दिल ना उम्मीद तो नहीं नहीं देखा। कमली, आई एम हियरिंग ग्रेट थिंग्स अबाउट कमली। कमली मैंने पाकिस्तान में देखूंगा, कमली के बारे में मैंने जी सुना, मैं जी, तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल देखूंगा। देखिए, बिल्कुल देखिए। तो जी जी। मेरा सिर्फ आपसे दरख्वास्त थी, और आपके जैसे तमाम नक़ाद जो हैं, जो बैठे हुए हैं, और हम सबके पास अभी हक है तनकीद का। तो ये जो हमारे जैसे तनकीदी निगाह से जब हम देखते हैं ना, तो एक बात याद रखिए कि जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री है उसको कोई सपोर्ट नहीं मिली हुई, ना स्टेट से, ना सोसाइटी से। कोई चीज़ गाना आता है तो हमारे आदि लोग जो हैं वो औरतों को गालियाँ देते हैं, बाकी कहते हैं कि जी ये तो बॉलीवुड से इंस्पायर्ड है। स्टेट कहती है हम तो उसको इंडस्ट्री नहीं मानते। ये पहली दफ़ा है कि उसने एक्चुअली, स्टेट ने इस पे कुछ काम पहले भी हुआ था, पीटीआई की गवर्नमेंट में भी हुआ था, अब पीएमएलएन की गवर्नमेंट में भी कुछ थोड़ा बहुत इस पे काम हो रहा है। इनको टैरिफ्स, इनको डिस्काउंटेड टैरिफ्स मिलने चाहिए। इस जो इलेक्ट्रिसिटी जिस पे ये सिनेमाज चलते हैं, इसी तरह ये जब कोई शूट करने जाते हैं तो उस पे जो डिस्काउंट्स होते हैं, टैक्स रिबेट्स होते हैं, ये पहले तो होते ही नहीं थे, तो अब जाके कहीं इस पे काम हुआ है। तो just keep an eye out, a bigger eye out, keep a larger view of what's happening in the industry. तो आई थिंक आपको थोड़ी
थोड़ा आप जो जिस तरह कह रहे हैं ना कि जी मैंने ये देखा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन पाकिस्तानी ये चीज़ को हमेशा एक जैसी बना देते हैं। ऐसा नहीं होता है, जैसे सैम ने भी कहा है कि जो आम मासी चीज़ें होती हैं वो मासी तरीके से ही चलती हैं, और वो मासी ही होती हैं। उनके लिए को बहुत उनके लिए आपने उसमें ज़िंदगी का फ़लसफ़ा नहीं ढूँढना होता, वो आपने 3 घंटे फ़िल्म की एन्जॉय करनी होती है और बाहर निकल जाना होता है। ठीक है, चलें जी, सना अफ़रीदी क्या कहेंगी? वेलकम टू माय स्पेस, क्या हाल-चाल? Assalamu alaikum. Thank वालेकुम you so सलाम, much हाउ for आर यू? giving me chance. मैं इतनी देर से आई एम सो इंतजार सॉरी ही अबाउट द डिले जी, No, सो no, सॉरी। not at all. Thank you so much. And in fact, मुझे बहुत मज़ा आया सबकी बातें सुनने में. हर किसी का अपना व्यू होता है, हर कोई अपने लिहाज से बात करता है. बट मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी बिकॉज ऑलरेडी 1:30 बज रहा है रात के एंड आई एम श्योर कल सब लोगों को जाना है ऑफिस के लिए. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी, मैं बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखती हूँ. मैं माविश नोज अबाउट दैट. मैं हर मूवी जाकर देखती हूँ एंड आई सपोर्ट माई पाकिस्तानी सिनेमा. चाहे मूवी अच्छी हो ना हो, तो बस आप सब लोग जो इतने भी पाकिस्तानी हैं, यू शुड गो एंड वॉच इट. देखिए, हर किसी को ज़रूरी नहीं हर मूवी अच्छी लगे. मतलब लाइक माविश मुझे निकाल देंगी इसमें से, मुझे पता है कि शी लव्स हुमायूं सईद और मुझे ये मूवी बस नॉर्मल लगी है. बट मेरे लिहाज से कायदे आज़म जिंदाबाद वॉज एक्सेलेंट और लंदन नहीं जाऊंगा वॉज एन एवरेज. ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू. इट डजेंट मीन कि मैं उसको इम्पोज करूँ कि भी आप नहीं देखने जा सकते. आई एम सॉरी, ऐसा नहीं है और उसकी बुराइयां करूँ. प्लीज गो एंड वॉच एंड सपोर्ट. बिकॉज हम नहीं सपोर्ट करेंगे ना तो फिर कैसे वो चलेगी. दे ऑल नीड आवर सपोर्ट. इंडिया में क्या होता है, सारे उनकी जो पब्लिक है वो सपोर्ट करती है. शाहरुख खान की मूवी आती है पागल हो जाते हैं, फौरन चले जाते हैं, जाकर देखते हैं. सलमान खान की मूवी के लिए भाई की मूवी आई है, जाकर देख. तो फिर हम क्यों नहीं जा सकते, हम क्यों नहीं हुमायूं सईद को सपोर्ट कर सकते, हम क्यों नहीं जाके फाद मुस्तफ़ा की मूवी. क्यों वो बेचारा बार बार बोल रहा है कि जी आप 1,000 रुपीज़ मुझ पे स्पेंड करने, सिर्फ 1,000 रुपीज़ के लिए आप वो जाके मेरी मूवी को सपोर्ट करें. वाई ही नीड्स टू से दैट. वी शुड गो एंड वॉच द मूवी. आपको पता है मैंने ये 2 मूवीज तो देखी देखी, तीसरी मैंने लफंगे भी जाकर देखी. इवन तो बेचारों ने मतलब पूरी कोशिश की है बनाने की, इवन दो इट वाज नॉट दैट अप टू मार्क, बट स्टिल ट्रस्ट मी आई वेंट. व्हाई? बिकॉज आई वांटेड टू सपोर्ट. भाई वो बना रहे ना, आज गलती की है, कल इंशाअल्लाह और अच्छा बनाएंगे. आज उनको पता चल जाएगा जी ये मसला है, ये मसला था, ये मसला. हम सबका जो भी हम अपने व्यूज होते हैं, हमारी जो भी बातें होती हैं, हम बताते हैं इसलिए ही है. माविश बताती हैं, सदफ बताती हैं. आई मीन आई स्टार्टेड डूइंग दैट. तो मतलब हम सब इसलिए बताएं ताकि वो अपने आप को इम्प्रूव करें, ताकि कल के दिन क्या पता यही मानी यही लोग और अच्छी मूवी बनाए, वही हॉरर मूवीज और मजेदार बनाए. सो बस मैं ये बोलना चाहूंगी, प्लीज गो सपोर्ट योर मूवीज. स्टॉप हेटिंग एवरीबडी बिकॉज यही गलत बात हो रही है. थैंक यू सो मच. आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू टेक मोर मच टाइम एंड नो, थैंक यू सो मच थैंक फॉर यू, गिविंग मी चांस. या थैंक यू. सना एंड आई गो वे बैक, वी वर कॉलेज मेट्स, एंड शी हैज़ द सेम पॉजिटिव एनर्जी स्टिल, सो दैट्स ग्रेट टू नो. जी सदफ, क्या कहेंगी आप? फिर लेट्स रैप इट अप. Right. I'm gonna say I love you, Sana. I agree with you, but one thing I will disagree with, and that is you don't need to go and support Pakistani cinema. These films they stand on their own. वो पहले मैं कहती रही हूँ बड़ा support Pakistani cinema, लेकिन good film doesn't need your support. These are so entertaining, so fabulous that I think that you will not waste your money. Okay, and जहाँ तक बात है, people, not everybody is like us. हम लोग critics हैं, हम लोग बहुत refinements देखते हैं. Other people they want to have a good time. तालियां बजाई, hooting की, वो थोड़े से मजे लिए, and they enjoy, and that's enough. And as Sam said, that wash of money, वो बहती गंगा होती है, या there is a tide in the affairs of men, to quote Shakespeare, that taken at the flood, right? So right now these films are kind of like cash cows. तो ठीक है, उनमें थोड़े से वो मोटिव्स हैं पुराने वराने ये वो, लेकिन वही शाहरुख वाली बात. एंड हाउ इज इट एवरीथिंग एंड्स अप एट शाहरुख, आई डोंट नो व्हाई, बट मे बी इट्स जस्ट मी के नई पैकेट, व्हाट इज दैट, नए पैकेट में चीज बेचें हम तुमको पुरानी. एंड या इफ यू कैन एक्सिक्यूट अ मूवी वेल, इफ यू कैन डू थिंग्स, then why not? The public तो खरीदेगी, right? I mean, there were bits and pieces wrong with London नहीं जाऊंगा as well. I think Sabah Hamid
should not have been in it. She seemed half asleep, but that's just me. Everybody else was enjoying it, right? And but actually, I think Mavish, can you answer this? I'm very proud of Sabah and all these people. Ifat Umar was in it too. Meher Banu, who's a sweetheart. They were kind of, I guess, they joined to encourage KRQ in his new kind of like being a better person, more feminist, etc. Yeah, Right? I guess cancel Yeah, वो culture is encourage over करने over. के लिए उन्होंने join किया and I like that positive. उन्होंने कहा कि अच्छा चलो we'll be part of it ना. नहीं बिल्कुल कैंसिल कल्चर इज आई थिंक ऑफिशियली ओवर विद दिस बिकॉज Yeah. खलील रहमान कमर की फिल्म है और इतनी हमारी माशाल्लाह फायर ब्रांड फेमिनिस्ट उस फिल्म में स्टार कर रही हैं. सो गुड ऑन देम. आई होप टू सी देम इन हिज नेक्स्ट फिल्म आल्सो एंड मल्टीपल फिल्म्स. और जितने लोगों को कैंसिल किया जा रहा है मैं चाहती हूँ कि वो सब लोग ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाएं ताकि लाइक यू सेड बहती गंगा में सब हाथ धोएं. बिल्कुल आपने सही कहा सदफ कि अब सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. फिल्म्स शुड स्टैंड ऑन देयर ओन. इतना तो टाइम आ गया है. और एक ज़माना था वाक़ई जब हुमायूँ ने, मैं क्यों हुमायूँ की इतनी तारीफ़ करती हूँ. जिस वक़्त किसी ने सिनेमा में ये पंगा नहीं लिया था, हुमायूँ अकेला था जिसने मैं हूँ शाहिद अफ़रीदी का पंगा लिया था. जब कोई नहीं बना रहा था, जब कोई फ़िल्मों की तरफ देख नहीं रहा था, उस वक़्त हुमायूँ खड़ा हुआ था. अब बहुत कूल हो गया है फ़िल्में बनाना, हर बंदा बना रहा है अब हम. और जो किसी ने ये भी कहा कि हम डिफरेंट स्टोरीज़ नहीं बना रहे हैं, ऐसा भी नहीं है भाई. जामी ने मूर बनाई थी, दुख्तर बनाई थी आफिया नथानियल ने, ये बड़ी ज़बरदस्त जिनको आप कोट अनकोट पैरेलल सिनेमा कहते हैं, वो फ़िल्में थी है यार, ये मासी फ़िल्में थी नहीं. तो ये जो अगर आप कोई बात करें ना कि जी हम हर तरह की फ़िल्में बना नहीं रहे, ऐसी बात नहीं है, आप देख नहीं रहे. अगर आप देखें तो आपको दिख जाएँगी. हम लोगों ने देखी हैं, सदफ और मैं कितनी बात करते हैं, आई एम श्योर सना है और भी लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं. सबने वो फ़िल्में देखी हैं, लेकिन अगर आप उनको एक्नॉलेज नहीं कर रहे उनकी प्रेज़ेंस तो इट्स अ डिससर्विस टू देम. सिमिलरली जैसे वही बात बार-बार हो रही है कि मेनस्ट्रीम फ़िल्म जो है वो डिफरेंट उसका फ्लेवर होता है. उसमें बैठ के वो जो है ना उर्दू के नक्काद बन के उसमें से मीन मीख निकालना बंद कर दें. वो एक एंटरटेनर है. सलमान खान की फ़िल्म में वो टक से छलांग मार के दरिया है पता नहीं कौन से यूरोप के दरिया में कूद के वहाँ से लड़की बाहर निकाल लेता है. वहाँ तो सब तालियाँ बजाते हैं. पाकिस्तान में वो बजरंगी भाईजान इतने बड़ी-बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट बना रही है, जबकि वो जय श्री राम करके वो सुरंग से निकल रहा है, तालियाँ पीट रहा है, तो तब तो किसी को बुरा नहीं लगा. लेकिन अगर हुमायूं से लंदन जाके एक इम्पैशंट प्ली दे देता है महविश हयात को जीतने के लिए, तो यहाँ सब ने अपनी वो नक्कादों की टोपियाँ पहन के हम शुरू हो जाते हैं. तो बिल्कुल मैं इस बात से इत्तेफाक करती हूँ कि ऐसा बिल्कुल ये एक अजीब व गरीब किस्म का हैजान की कैफियत होती है पाकिस्तान में. ड्रामा आएगा नहीं देखेंगे, फिल्म आएगी नहीं देखेंगे. अल्लाह का शुक्र है अब वो चीज़ थोड़ी ख़त्म हो गई है. लोग देख लेते हैं, गालियाँ देते हैं. अल्लाह करे अगला स्टेज ये हो कि देख लें और गालियाँ बंद कर दें और सिर्फ़ उसी चीज़ को गालियाँ दें जो वाक़ई में बुरी हो. और लंदन नहीं जाऊँगा मेरे ख़्याल में बेहतर फ़िल्म इसलिए थी क्योंकि जो उसकी आई थिंक उसका स्क्रीन प्ले काफ़ी ज़्यादा टुगेदर था. कायद-ए-आज़म के ज़िंदाबाद के सेकंड हाफ में प्रॉब्लम्स थे लेकिन द फर्स्ट हाफ वाज़ अमेज़िंग, इट वाज़ ब्रिलियंट. शायद वो माहिरा को थोड़ा और यूज़ करते, एक आध गाने डालते तो वो थोड़ा एंटरटेनिंग एलिमेंट रहता. एंड लंदन नहीं जाऊँगा की एक और ज़रूरी अच्छी बात ये थी और मुझे लगता है कि ये खलील रहमान कमर की एक ख़ास किस्म की ऑडियंस है, ख़ास किस्म का फ़ैन बेस है उनका. जब वो गैरत की बात करते हैं और जब वो बताते हैं कि गैरत के नाम पे कत्ल करना या गैरत के नाम पे इस तरह की बातें करना या एक जो जेंडर डिफरेंसेस हमारे यहाँ कल्चर में है, इससे ज़्यादा बड़ा कल्चरल कमेंट क्या होगा. तो उनकी ऑडियंस भी जब ये देख के थोड़ा सीखती है कि हाँ यार मतलब ये बात भी है. इन्होंने कुछ ना भी कहा कह भी गए. एक एंटरटेनिंग फ़िल्म है, डायलॉग्स बड़े मज़े के हैं, हुमायूं की डिलीवरी बहुत अच्छी है. मैंने जब फ़िल्म देख रही थी तो मेरे साथ इंडियन लोग बैठे हुए थे. वो तालियां बजा रहे थे और वो बहुत उनको बहुत पसंद है हुमायूं. एक बड़ी उधेड़ उम्र के हजरत थे. उन्होंने वो अपनी बेगम के साथ आए हुए थे. उन्होंने कहा कि हमने हुमायूं की फिल्म मेरे पास तुम हो वो ड्रामा देखा था मेरे पास तुम हो. उसकी वजह से हम लंदन नहीं जाऊंगा देखने आए हैं. अब आप ये देखिए तो वो बात ही वो आर्ग्यूमेंट ही खत्म हो गया कि टीवी के हैं तो इसके हैं तो उसके हैं. अब भाई इंस्टाग्राम के स्टार्स तो फिल्में कर रहे हैं. टिकटॉक वाले तो सैयद नूर जन्नत मिर्जा को उन्होंने कास्ट कर लिया. मिर्जा नाम है क्या नाम है उस लड़की का. तो ये सब डिस्कशंस बहुत पुरानी हो गई हैं. और वो जो लोग कहते हैं कि अरे हम क्या अपने नए लोगों को क्यों नहीं लाते. आप नए लोग मैं आ जाऊंगी कल फिल्म में आप देखेंगे जाके पैसा देंगे कि नहीं देंगे. हुमायूं को ही दोगे भाई पैसा. महविश को ही दोगे माहिरा को दोगे ना पैसा. सो दैट इज आई मीन आई थिंक लॉट ऑफ दीज क्रिटिसिज्म्स आर जस्ट लाइक हाँ बट लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ. अरे भाई मतलब कोई सोच समझ के बात करें लोग. और फिर मेरा ख्याल से हम सब के ऊपर अब जिम्मेदारी क्योंकि हम सबके पास ट्विटर है,
हम स्पेसेस कर सकते हैं, हम लाइव जा सकते हैं, हम यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं। ज़िम्मेदारी के साथ बात करें, कोई नहीं कह रहा कि आप 50,000 किताबें पढ़ें, मैंने भी नहीं पढ़ी हुई। लेकिन ज़िम्मेदारी के साथ बात करें, तो ज़िम्मेदारी के साथ बात करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मेरा ज्ञान खत्म हुआ, मैं स्पेस रैप अप कर रही हूँ, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और अल्लाह करे आप लोग आगे हमारी अगली स्पेसेस में भी आएँ। लेकिन सदफ कुछ कहेंगी आप? I know except to agree with you. I think we should wrap up here. I think I agree with you on that कि थोड़ा सा ना हम लोगों को भी आदत बात करने के लिए बात कर रहे होते हैं sometimes ना. So there is that ये क्यों नहीं हुआ हमारे ड्रामा में, हमारी फिल्म में ये होना चाहिए वो भैया आप देखें जो बजट है, जो रिसोर्सेज है, वो ऑडियंस बिल्ड हो रहा है. अब ये यही हुआ है माशाल्लाह कि ये दोनों फिल्में चल रही हैं. एंड आई थिंक लंदन नहीं जाऊंगा हैज़ अ लिटिल बिट ऑफ एन एज देयर. तो वो पैसे इन्वेस्ट होंगे, वो आएंगे. एंड आई एम होपिंग कमली विल रिलीज टू एज वेल एंड गेट एंड बिकॉज शर्मा डिजर्व्स दैट काइंड ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस एज वेल. तो वी विल गेट दैट फ्लड ऑफ मनी और फिर थोड़ी सी और फाइन ट्यूनिंग होगी. भई वो कि कई दिन पिंड पिया नहीं थे चक्के पहले आ गए. द पंजाबीज विल नो व्हाट आई एम सेइंग. हाँ, हमें बिल्कुल, बिल्कुल। इतनी हमारी रिक्वेस्ट्स हैं कि अब ये होना चाहिए, अब वो होना चाहिए. भाई पैसे होंगे तो फिर बुढ़ी ना आएगी ना. सो देयर यू गो. नहीं, मैं बता रही हूँ सदफ, मुझे इतनी ट्रेपिडेशन फील होती है, मेरी फ़िल्म आ रही है, मैंने जो फ़िल्म लिखी है वो आ रही है। एंड वी आर अब एक्साइटेड किसी फॉर की या और किसी की चीज़ को ऐसे ट्रैश कर देना बड़ा आसान है। लेकिन अब मेरी फ़िल्म आ रही है तो मैं आई कैन फील लाइक 2% ऑफ व्हाट मे बी पीपल लाइक हुमायूं एंड अदर गाइस फील बिकॉज़ भाई आपको टेंशन हो रही होती है कि आपने जो लिखा है या जो आपने बनाया है पता नहीं लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा। तो Okay, अल्लाह करे। we did know, Mavish, we did not know that Humayun and Mavish were in the hall. हमें बताया गया था कि वो अभी आ ही नहीं रहे. Right? So it was, we were खुल के लोग हंसे थे जब हाँ, Humayun was listening. उसके चेहरे की, I think तसरात, what do you call it? The look on his face या was like he couldn't believe कि this wasn't supporting Pakistani cinema. This was just people enjoying themselves. एन्जॉयिंग द फ़िल्म। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, सारा इज़ हियर। सारा क्लोजिंग कमेंट्स दे दें, हम खत्म कर रहे हैं स्पेस। क्या हाल है? अच्छा, सैम वांट्स टू से समथिंग। सारा नहीं, सिर्फ एक ही लाइन मैं कहना चाहता हूँ। पाकिस्तानी को थोड़ा सा ना, हमारे पाकिस्तानियों को एक वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाला थोड़ा सा सिंड्रोम है। ऐसा ही है, तो ऐसा ही है। हाँ, तो यू ट्रीट योर सेलिब्रिटी जैसे, वही मैंने बोला ना, फुप्पी के बेटे बेटियों वाला एटीट्यूड होता है। ऐसे बिल्कुल ऐसे सो ही है, बिल्कुल। तो वो मत करें प्लीज, ट्राई एंड गिव देम लिटिल रिस्पेक्ट, और घर की मुर्गी दाल बराबर ना रखें, बिकॉज दे आर नॉट दाल, दे रियली चिकन तंदूरी एंड चिकन यार कोफ्ता। सो कोरमा, प्लीज उनकी कोरमा कोरमा है भाई, कोरमा। बिरयानी उनको उनकी कदर करें प्लीज। थैंक यू। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सैम, थैंक यू फॉर बीइंग सो सपोर्टिव एंड ऑलवेज साउंडिंग ऑफ द राइट रीजनेबल पॉइंट्स। आई थिंक सारा का पता नहीं माइक चल रहा है। सारा कुछ कहेंगी? हाँ जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि हम लोग यहाँ पे बॉस्टन मैसाचुसेट्स में बैठे हैं एंड वी हैव सीन एवरी मूवी व्हिच हैज रिलीज्ड हियर, इवन दो अगर वीकडे पे लाइक मंडे और ट्यूसडे को 2 दिन और ट्यूसडे वेंसडे को लगी है, तो हम लोग घंटा घंटा 1.5 घंटा ड्राइव करके गए हैं। और हम लोग सारा हमारे पाकिस्तान एसोसिएशन में सारा आ जाता है कि दिस मूवी इज कमिंग, सो वी मेक श्योर वी ऑल गो टुगेदर, तो वो प्राइवेट स्क्रीनिंग हो जाती है। और इवन अभी छोटी ईद पे वी ओनली हैड पर्दे में रहने दो और हम सब गए देखने, कि भाई पाकिस्तानी मूवी आई है। इस साल हमारे साथ इतनी अच्छी मूवीज आई हैं, पर इस साल हमारे साथ बहुत लाइक धोखा हो गया। नथिंग केम, वी ऑल बीन डाइंग टू गो। और ना कायदे आजम आई यहाँ पे, जबकि यहाँ बहुत इंडियंस भी हैं जो मायरा खान के बहुत बड़े सपोर्टर्स हैं। एंड लंदन नहीं जाऊंगी, हम लोग परे हाथ लव, परवाज़ जुनून, JPNA 2, आई मीन जो मूवी लगी है हम लोगों ने जाके देखे। इवन लाइक 7 दिन मोहब्बत इन भी हम जाके हमने देखी थी। तो दिस टाइम आई थिंक इतनी बड़ी यहाँ पे बॉस्टन की देसी ऑडियंस को काफी लाइक आई डोंट नो, मे बी दे नॉट मेकिंग इनफ मनी, बट इवन दो हम लोग तो ट्यूसडे वेंसडे को भी चले जाते हैं। बट आई गेस अब हमें आप लोगों की हम कमेंट सुनते हैं, रिव्यूज देखते हैं, एंड वी हैव टू वेट अगर जब भी वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आएगी। सो इट्स दिस पार्ट ऑफ अमेरिका वी आर लिटिल लाइक डिसअपॉइंटेड दिस ईयर।
नहीं, लेकिन मैंने आपके रिक्वेस्ट उनकी टीम को पहुंचाई थी और आई डोंट नो, मैं फिर दोबारा फॉलो अप करूंगी। बड़ी ऑड बात है कि अगर मैं रेगुलरली लगती हैं तो इस दफा क्यों नहीं लगी, सो डेफिनेटली डू दैट। आपकी जो बट इट्स फ्रेंड सो बहरीन में रहती हैं जिन्होंने वापस लगवा दी, आई विश हम लोगों के पास भी कोई ऐसे वो होते तरीका कि हम इनसे कम से कम इवन अगर 1-2 दिन के लिए लगवा दें तो हम लोग सब मिल के चले जाएंगे, हम लोग पता है सारा बिल्कुल मैं गाड़ियां। पता करवाऊंगी। सारा वो पता कराती हूँ मैं, वो आई थिंक हाँ, वो सदफ इज द बेस्ट रेडियो पर्सन। आजाद वाले शायद करवा दें। इफ यू हैव अ लार्ज ग्रुप, मैं बात करती हूँ मैं आयशा शफी से ना, तो शी रन्स रेडियोस, वो स्पेशल स्क्रीनिंग्स भी कराती हैं। आई थिंक दैट वुड बी ग्रेट सदफ इफ यू कुड डू दैट। Just एंड आई wanted विल to make आल्सो one point, Mahwish, with your जी permission. जी एक्चुअली जी जो सारा ने जो कहा ना उस पे थोड़ा सा मैं, क्योंकि मैं लॉस एंजलिस में हूँ, तो यहाँ पे भी वो फिल्म एक्चुअली लगी नहीं थी। सबसे जो एएमसी है सबसे बड़ा, पता नहीं डिस्ट्रीब्यूशन का है, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो आई वाज नॉट एबल टू, बिकॉज एएमसी में ज्यादा सबसे ज्यादा है, तो आई वाज नॉट एबल टू गो एंड फाइंड इट एनीवेयर। ये दोनों फिल्में यहाँ पे लॉस एंजलिस में नहीं थी, बट 2 दिन पहले इनका रेड कार्पेट यहाँ पे हुआ था लॉस एंजलिस में। आई थिंक ऑल योर एक्टर्स वर हियर, and but that was a private screening in a theater in Los Angeles downtown. लेकिन वो जिस तरह से मतलब AMC में डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था, जितने सिनेमा हॉल उनको मिलने चाहिए थे, वो पता नहीं क्यों नहीं मिले। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग बिहाइंड दैट, बट अगर आई थिंक वो हो जाता, अगर फ्यूचर में हो जाए तो इट विल बी बेटर, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल मिस्ड आउट ऑन दैट। मैं खुद भी जा नहीं पाया, सो दैट्स समथिंग आई वांटेड टू हाईलाइट। थैंक यू। वो जो है नो आई आई विल थिंक सैन डेफिनेटली होजे में, सॉरी सैन होजे में लगी, नो सॉरी सैन फ्रांसिस्को एरिया में, बट ओनली इन फ्रीमॉन्ट। तो दैट वाज अ वेरी गुड एरिया वेयर दे पुट इट, बट अदरवाइज और काफी कम जगहों पे लगी। इवन न्यू जर्सी, जहाँ ये एडिसन न्यू जर्सी का एरिया है, वेरी देसी एरिया, वहां उन्होंने नहीं लगाई और सिर्फ जर्सी सिटी में लगाई, विच वाज क्वाइट सरप्राइजिंग टू मी। एटलीस्ट 2-3 शहर either around Edison, New Jersey, they could have easily, shown the movie. So I guess they हाँ, need people. यू नीड टू मूव टू डैलस, क्योंकि हमारे लोकल एएमसीज में लगी हुई थी। Yeah, I think I'm moving to Dallas. Seriously, सदफ मैं आ रही हूँ आपके पास। यहाँ हमारे जी साथ आया। बहुत बुरा होता है। ओह, नहीं, बस आई रियली होप कि सदफ आप उनसे बात कीजिए अगर कोई प्राइवेट स्क्रीनिंग हो सकती है। और मैं दोबारा उनसे फॉर कहती हूँ, श्योर। वो कहीं छुट्टी पे गए हुए हैं, लेकिन ये कि मैंने एक है उनसे मैंने बात की थी ईआरवाई में, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड पुश इट अगेन। आई विल टॉक टू जजी सेजा, आई विल आल्सो ड्रॉप a request to Humayun, and I will also try and talk to as many people as possible to make sure कि यहाँ पे इतनी बड़ी audiences हैं, वो क्यों नहीं इस पे काम करती। तो बस क्लोज मार्क्स मेरी तरफ से तो यही है। आई डोंट नो आप लोग कुछ और अगर कहना चाह रहे हैं तो यही है कि आई थिंक दैट दिस वाज अ वेरी प्रॉमिसिंग। I really hope that other people get to see these movies whenever they come on OTT या किसी तरह वो सिनेमा में लग जाएं। एंड आई ऑल्सो होप कि आगे जाके हम बेहतर फिल्में भी बनाएं, हर तरह की फिल्में भी बनाएं, और दिस विल encourage people to create more screens. That is the key. If the screens are there and the stories are good, we're golden. But if we're not making screens, then यही हमारा सीलिंग लेवल रहेगा। आपको अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली यही लोग आपको दिखेंगे, बट इसमें उन लोगों का कोई कसूर नहीं है। आवाम इन्हीं को देखने आई है। They want to see Humayun chasing a girl. They want to see Fahad jumping off a plane. So, I mean, I'm sorry. And there's nothing wrong with it. Absolutely not. It's just that we need to be less critical in this sense कि हम बिला वजह जो criticism करते हैं ना, I think उससे थोड़ा गुरेज करना चाहिए। And I think this is a very promising Eid. Last Eid was not good. This Eid has been very, very good. That's why Sadaf and I were so excited to host this space and talk about it. It was so good to listen to all of you guys and your feedback and your thoughts. And I think that's the way to go to kind of continue having these conversations. And that's it from me. Sadaf, you want to add something? No, I'm good. I just want to thank you and thank everyone else for taking part. So we have some disagreements, कोई बात नहीं. This is what this space is for. 100%, 100%. So let's keep the disagreements at civil, civil disagreement, and not go crazy. And let's hope that we continue to have this collaborative spirit in the future as well. कि feminist, non-feminist, cancel culturers, and non-cancel culturers, हम सब काम करें, because we all need it. We need all hands on deck. So thank you so much, guys, for joining this space.
Take care of yourself. The recording will be available, and I'll also try to put it on my YouTube channel so you can check it out there. Thank you so much, guys. Have a lovely day, evening, dusk, whatever, wherever you are. God bless you all.